Hello guys, this is Dr. Avishkar Agarwal. I am postgraduate student from MAMC, from Department of Medicine. Here, after getting lots of requests from my juniors, especially my final years, who come to my ward and tell me that sir, they don't know how to approach an ECG. They want me to give them some kind of approach to an ECG. You know how to start reading an ECG paper and how to cleanse the diagnosis from ECG. And basically what happens is ki when I myself was in final year a couple of years back, all I used to think when I used to get a ECG was, is it AF or is it ST segment elevated MI? Just two things. So I want you guys to develop a approach and make diagnosis, and whenever you get the ECG, you should know how to approach and how to make very simple diagnosis which one should never miss. Depending, either you are doesn't matter, even if you are a surgery resident in future or derma resident, anesthesia resident, and of course gynae, please somehow learn this thing. And jokes apart, no offense. And also the point is ki I don't want you to take from this approach to the ECG to arrhythmias, this part of the our Harrison, this part specifically, disorders of rhythm. And I know most of you really fear this part, and when we were in final year I also used to live this part ki I don't know kya ho kya raha isme. So this is really very difficult part from Harrison, but I think so once you develop some concepts and once you start reading it systematically in organized manner, you will feel that this is one of the easiest part of Harrison. Actually, it's purely mathematics here, as simple as maths, numbers, and simple calculations, like things are happening. If this is there, this will happen. Arithmetics, nothing else. So I think this will be very interesting part. So I want you to develop the approach, and from the approach I will take you to condition where you will be able to diagnose these things, and from there will take you to ACLS. Management of these things are only ACLS, right? So I want to build the approach, how to look at an ECG, then we'll diagnose these things, and from there we'll go to ACLS. So basically I'll be touching ACLS also for you. So basically this is my theme plan to discuss with you: ECGs and arrhythmia with a little bit of touch of ACLS. And this is what I call the uncharted waters, because like I explained, we always leave that part. At least I used to do. So for starting this topic, what I need to what I need you people to know as a prerequisite knowledge is about the ECGs, or about a normal ECG, about the different types of waves and intervals and segments that are there in the ECG, how to calculate the heart rate, what is an ECG paper, right? And what are those boxes in the ECG paper denote, and how much what is the speed of the ECG paper and all, and what is a normal PQRS and T, means how it is formed, the formation, and here I mean the formation of normal QRST. See, if you want, I can discuss every little part of these things, but the point is, I assume if you are here to build an approach to ECG, you know what an ECG is, how it is made, means you know the very basics of the ECG. If you want me to discuss this, I can make other videos, or I'm thinking to putting some links along with this video for YouTube videos only of other people who have uploaded, which I found was very easy to understand for these topics. So basically let's see what we can do, but I want somehow, if you are knowing this, then only you should continue with the rest of the video, otherwise there is no need. First you need to know all these things. These are very basics, these are ABCDs, so first you should know this, right? Then moving on to next part. So what will be our roadmap? This will be our roadmap. First of all, I'll discuss a little bit about ECG paper, leads, their placement and all, then formation of a normal QRS. Then we'll quickly jump into tachyarrhythmias and bradyarrhythmias, right? So let's begin this topic. So first of all, ECG paper, right? So let's talk about an ECG paper. Okay, so continuing with our first topic, first subset of the topic, that is ECG paper. I just want you to know these three things. Rest you must be knowing, or you go through my videos, right? Previous videos, or the videos which I will link, whatever I do. Anyway, so here what you do is we have a ECG paper. The speed of the ECG paper is 25 millimeter per second, right? And in that ECG paper, one large box
is equal to 200 milliseconds, that is 0.2 seconds, right? That is equivalent to 0.2 seconds. And one small box, that is not 4, that is 5, right? One large box is equals to 5 small boxes. So that, and so basically each small box would be of 40 milliseconds. You should be knowing this. And if you see the vertical height of this one small box, so it will be equivalent to 0.1 millivolt. Basically you should be knowing these two values, you're good to go, right? Next small thing I just want to know you people about is leads. So in ECG what we do is that we use certain leads, and through that basically not the leads, we practically, in practical purpose, we use certain electrodes, and these electrodes pick up the potential difference, right? And when they pick up the potential difference, the points between which they are picking up the potential difference are basically denoted by leads, right? So what we do is, we in ECG in ECG, a standard ECG, we use a 12 lead system, right? A 12 lead system is used. In this 12 lead system, where we are having 6 vertical and 6 horizontal leads. These horizontal leads are known as chest leads, and basically it consists of V1 to V6 placement of the list. You can see there in my previous video. In vertical system of the leads, these are also called as frontal leads. The leads which we use here is 1, 2, 3, AVL, AVF and AVR. Here I would like to say कि whatever source you are using your leads, there is this book called Soman Manna for Physiology. There I found the best and easiest description of the ECG leads, so and hardly 2 or 3 pages में दिया है. तो I think you should consider reading Soman Manna से ECG का setup बहुत अच्छा दिया, perfect. Now coming back to ECGs, also one thing we need to know about ECG is the axis diagram. Axis diagram basically is with respect to leads placement, that how are the leads placed in the ECG, right? I'll draw this for you. Let's try drawing this for you. So what I'll do is I'll make, see, we have heart. Don't worry, I'm making the biological heart, right? This is our heart, the 4-chambered heart, and it is assume this is the human body, right? So this is the chest part. So heart is placed like this. Now what I'll do is I'll assume an imaginary axis like this, right? That is going through the center, that is keeping heart at the center. Alright, now we have an imaginary lead. I told you that we have leads in the ECG. So we had one group of leads that was called as the horizontal lead, and one group of lead that was known as the frontal leads, right? Or the vertical leads, or the vertical leads. So what we do is, we are basically allocating access to those frontal leads. Frontal leads were, revise with me, it was 1, 2, 3, AVL, AVR and AVF, right? These were the frontal leads. So what we are doing is we will allocate access to these frontal leads. Basically what happens is let us understand a basic concept here. We have ECG की leads, 12 leads हैं. इनमें से जो 6 leads हैं वो हार्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताएंगे. These are called horizontal leads. तो वो हार्ट को हॉरिजॉन्टली देखेंगी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में वो हार्ट को देखेंगी. गेटिंग इट? या नाउ अच्छा, हार्ट का लेवल क्या होता है? हार्ट का एपेक्स, लाइक वी नो फ्रॉम फाइनल ईयर्स की, स्पीकिंग टू फाइनल ईयर्स, वी नो हार्ट की एपेक्स बिट कहाँ पर आती है? मैमरी ग्लैंड्स के थोड़ा सा नीचे एंड ऑल है. तो नियरली उस लेवल पे हम वो 6 की 6 चेस्ट लीड्स को, हॉरिजॉन्टल लीड्स को प्लेस करते हैं. तो उसी लेवल पे हम हार्ट को हॉरिजॉन्टली देखते हैं. ठीक है. फ्रंटल लीड्स जो होता है ना, वो हार्ट को इस प्लेन में देखता है. बेसिकली हार्ट को सामने से देख रहा होता है. हॉरिजॉन्टल लीड्स तो हार्ट को यूँ देख रही है, राइट? इस तरीके से, मतलब इफ यू कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द हार्ट लाइक दिस, तो वो इस प्लेन में देख रही थी. फ्रंटल लीड्स जो होती हैं वो हार्ट को
सपोज ऑब्जर्वर इज़ हियर एंड इट इज़ हार्ट की सारी एक्टिविटी को यहाँ से देख रही है, तो ये पूरी एक्टिविटी को इट इज़ कैचिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. सो दिस इज़ फ्रंटल लीड्स. तो फ्रंटल लीड्स का हम बेसिकली एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हार्ट, बिकॉज इट इज़ व्यूइंग द हार्ट in another different plane, right? So you don't ever have to mix this frontal leads with the horizontal leads. Horizontal leads का व्यू पॉइंट अलग है, फ्रंटल लीड्स का व्यू पॉइंट अलग है. तो अगर तुमने लीड्स वाला वीडियो देख लिया है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, you'll get it very easily. तो we have first of all lead 1 that comes here, then we have lead 2 that comes here, then we have lead 3 that comes here, राइट. लीड 2 ये वाला था और ये हो गया, दिस इज़ लीड 2, दिस इज़ लीड 3, देन वी हैव, अच्छा दिस इज़ एट 30 डिग्री, दिस इज़ एट 30 डिग्री. सो वी हैव अनदर लीड, दिस इज़ लीड AVL, दिस इज़ अगेन एट 30 डिग्री. देन वी हैव लीड AVF, just going downwards, right? Exactly downwards. And then we have one lead like this. This is again at 30 degree. This is called as lead AVR. तो बेसिकली हार्ट की ये लीड जो देख रही हैं हार्ट को, वो 6 फ्रंटल लीड इस तरीके से डिफाइंड है. लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVL, AVR एंड AVF. ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी लीड दूसरे लीड के जस्ट 180 डिग्री पे नहीं होती है. एंड 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट याद कर लो, तो यू कैन एनी टाइम रिप्रोड्यूस दिस डायग्राम. आई एम पॉजिंग दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड यू जस्ट ड्रॉ इट विदाउट द हार्ट. तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट इफ यू ड्रॉ इट विदाउट द हार्ट, लेट्स से बेसिकली इफ यू ड्रॉ इट ऑन अ स्टैंडर्ड पेपर लाइक दिस, सो यू विल गेट लीड 1 हियर एट 30 डिग्री, यू विल गेट लीड AVL हियर एट 30 डिग्री. फ्रॉम हियर यू विल गेट लीड 2, लीड AVF. At 30 degree from here you get lead 3, right? And what will be left with? Lead AVR at 30 degree. This is the standard diagram of lead placement. So, and our heart was somewhat like this, right? So basically which lead has its direction exactly parallel to the axis of heart? Lead 2, right? So I just touched this part of the lead placement just to tell you this part कि हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको अगर हम इन लीड्स के थ्रू देखें, इन लीड्स में इनको चार्ट करें, तो लीड्स आर बेसिकली आइज, यू नो दीज आर आइज, इलेक्ट्रिकल आइज विच आर लुकिंग एट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. सो हर आइज का एक व्यू फील्ड अलग है. कोई लीड 1 अगर है वो हार्ट को यहाँ से देख रही है ना, तो इसकी व्यू फील्ड अलग है. लीड 2 का हार्ट को देखने का व्यू फील्ड अलग है, राइट. लीड 3 का हार्ट को देखने का व्यू फील्ड अलग है. तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. बट सबसे बेस्ट हमें किस लीड्स में मिलेगा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर स्टडी करने को? लीड 2. फॉर मोस्ट ऑफ द हार्ट कंडीशंस लीड 2 हमें सबसे अच्छी हार्ट की कंडीशन बताएगी, क्योंकि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है वो डायरेक्टली पैरेलल हो रही है लीड 2 की. लीड 2 की डायरेक्शन ये है और हार्ट की डायरेक्शन देखो ये है ना. और सारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऊपर से नीचे ऐसे करके आएगी. गेटिंग इट? तो लीड 2 बस यही फोकस करना है कि लीड 2 हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे अच्छी बताएगी. पॉइंट 1, लीड 2 इज़ द बेस्ट वन, ठीक है. लीड 3, सॉरी leave this point. Now the next thing is I just want to touch into the basics. I don't want to go into the deeper sections. If you want me to explain some specific topic, you can just mail me or text me in my WhatsApp. I will tell that part Alex say, but here I just want to touch the basics and basics, so let's leave that part which I was going to tell. Lead 2 is the best lead, even what happens is we use a term long lead. Final years important, we use this term long lead. Now what long lead is ki whenever we get the ECG paper na in practical purposes, so we get small section of lead 1, small section of lead 2 and this lead 3. so 12 लीड्स की छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं हमारे पास में, इस तरीके से किए होंगे, उनके सामने यहाँ पे नाम लिखा होगा लीड्स का, तो 12 लीड्स का. लेकिन क्या होता है कि एक बड़ा सा उसी ग्राफ पेपर में एक लंबा सा एक लीड का आता है, वो लीड 2 होता है, बिकॉज इस लीड में हम मोस्ट ऑफ द थिंग को देख सकते हैं क्योंकि बेस्ट लीड है, तो इसलिए लॉन्ग लीड टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना. नॉट वेरी स्पेसिफिक या कुछ बहुत अलग से नहीं बताना इसमें, इतना तुम लोग समझ गए हो तो वी कैन क्विकली मूव टू नेक्स्ट थिंग.
I just want to quickly touch the topic that how a normal QRS is formed. So let's see a simple normal QRS. I don't want to discuss कि normal QRS में Q wave क्या होती है, R wave क्या होती है, वो तुम लोग देख लेना. I just want to discuss the concepts. Normal QRS फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, यहाँ कहीं से इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है. इम्पल्स यहाँ से जाएगी, आर यू एबल टू सी, इम्पल्स यहाँ से जाएगी ए बी नोड में, ओके. और ए बी नोड से ये कॉमन बंडल होते हुए, बंडल ऑफ फेस के कॉमन बंडल में होते हुए उसके दो ब्रांचेस में जाएगी, लेफ़्ट एंड राइट. तो दिस इज़ द राइट. राइट से राइट मस्कुलेचर को सप्लाई करेगी, लेफ़्ट से लेफ़्ट मस्कुलेचर को सप्लाई करेगी, ठीक है. एंड बेसिकली यहाँ पे परकिंजी फाइबर सब निकलेंगे. एंड यू नो ऑल दिस थिंग कि परकिंजी फाइबर्स आर द फास्टेस्ट कंडक्शन वाले फाइबर्स होते हैं हार्ट के अंदर में. देन ए वी नोड जो होता है वो स्लोवेस्ट होता है. ये सब तुम्हें पता होगा. ए वी नोड इज़ द स्लोवेस्ट परकिंजी फाइबर. आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस. आई जस्ट वांट क्विकली टू जंप इनटू द मेन थिंग जहाँ पे मज़ा आने वाला है. दीज थिंग्स तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो और अब तक पढ़े होगे, मज़ा इसमें नहीं है. और वैसे भी यार मेडिसिन वाला पढ़ा रहा है तो यू शुड कम टू मेडिसिन नॉट द फिजियोलॉजी. ये सब तो कुछ नहीं है. नेक्स्ट थिंग, नो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि ईसीजी तो हमने देख लिया कि ये फॉर्मेशन ऐसा होता है. नाउ लेट अस सपोज अज्यूम अ कंडीशन जहाँ पे क्या होगा कि इम्पल्स एक नॉर्मल बंदे में इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट होती है. ऐसे नोड से जनरेट होगी इम्पल्स, तो क्या होगा, सबसे पहले एक पी वेव आएगी. पी वेव आएगी, राइट. व्हाट इज़ पी वेव एग्जैक्टली गाइस? पी वेव इज़ नॉट ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होना. पी वेव इज़ ऐसे नोड से इम्पल्स का जनरेट होके ए बी नोड तक आना. ये पूरी एक्टिविटी बेसिकली एट्रियल, पी वेव को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं ना. तो ऐसे नोड से जनरेट होकर पूरा एट्रिया का डीपोलराइज होना. अंडरस्टैंड इट. ये बहुत बेसिक है और ये बहुत ज़रूरी है. वर्ड्स का प्ले देखना है यहाँ पे. हैरिसन्स खेल जाती है ऐसे वर्ड्स की प्ले में, हम मिस कर जाते हैं. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि पी वेव इज़ नॉट ऐसे नोड का फायर करना. पी वेव इस ऐसे नोड का फायर करने के बाद में एट्रियल का डीपोलराइज होते हुए ए बी नोड तक में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आना, वो पूरा का पूरा पी वेव सिग्निफाई करता है. इनफैक्ट तुमने पढ़ा होगा ना यार, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी वेव की मॉर्फोलॉजी कुछ अलग होती है. याद आया? नहीं आया तो पढ़ लेना अपने नोट्स में, और नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सअप कर लेना. वी कैन डिस्कस दैट लेटर. व्हाट आई वांट टू ट्राई इज कि एट्रिया ऐसे नोड से जनरेट होता है तो पी वेव, और सारा का सारा एट्रिया को उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग में हमारा एट्रिया डीपोलराइज होता है. तो उसके अकॉर्डिंग में वी गेट अ पी वेव विच इज़ एट्रियल डीपोलराइजेशन. पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद में क्या हो रहा है कि ए बी नोड में आया. ए बी नोड रिफ्रैक्टरी सा होता है, काम कम करता है. तो वहाँ पे हमें एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि ए बी नोड के अंदर में इम्पल्स रुक सा जाता है, धीरे धीरे कंडक्ट होता है. उसके बाद में फिर वो वेंट्रिकल को सप्लाई करता है. तो वेंट्रिकल में फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है, उसकी वजह से हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है. फिर वेंट्रिकल वापस से रीपोलराइज हो रहा है तो टी आर है. यही तो था ना हमारा पी क्यू आर एस टी, राइट. ये तो तुम्हें पता है. नाउ this is a normal thing, getting it? Now I want you guys to think of a situation where what if ऐसे नोड से इम्पल्स नहीं जनरेट हो रही है, इम्पल्स ए बी नोड से जनरेट हो रही है. केस 1, वी डोंट नो हाउ या वाई, वी जस्ट नो कि दिस इज़ हैपनिंग. आई डोंट वांट यू गाइज टू थिंक कि वाई इट इज़ हैपनिंग और हाउ इट इज़ हैपनिंग. दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. आई जस्ट वांट टू मेक यू थिंक कि सपोज ऐसा हो रहा है, ऐसे नोड फेल कर गया, ए बी नोड जनरेट कर रहा है. ऐसा तब हो सकता है जब ऐसे नोड फेल कर जाता है तो ए बी नोड नेक्स्ट फास्टेस्ट रिदम मेकर है, पेस मेकर है हमारे हार्ट के अंदर में, तो वही टेक ओवर करता है. बट लेट्स नॉट गो इनटू व्हाई एंड हाउ, वी आर जस्ट डीलिंग विथ व्हाट. तो व्हाट इफ ए बी नोड फायर्स, नो ऐसे नोड फायरिंग इज देयर. केस 1. केस 2, सपोज ए बी नोड भी फायर नहीं कर रहा है, ऐसे नोड भी फायर नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल खुद फायर कर रहे हैं. तो लेट्स सी, जब भी ऐसे नोड फायर कर रहा होता है तो कंडक्शन क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ पी वेव दे रहा था, यहाँ पे डिले हो रहा था, तो वी हैड पी आर इंटरवल. या उसके बाद में इसके बंडल ऑफ फेस के थ्रू वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन हो रही थी. अब जो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन है, लिसन दिस, वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन अगर बंडल ऑफ हिस के थ्रू होगा तो फास्ट होगा, क्योंकि
परकिंजी सिस्टम है हमारे पास में, दैट इज़ अ फास्ट थिंग, अभी मैंने बताया था ये फास्टेस्ट होता है इनफैक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन अगर बंडल ऑफ हिस के थ्रू हुआ तो ये, अगर विदाउट बंडल ऑफ हिस होता है तो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन स्लो होगा, पहला कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर सपोज वेंट्रिकल में ऐसा कोई फोकाई आ जाए जो खुद से ही रिदम जनरेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक आ गया, ये दोनों फायर नहीं कर रहे हैं, और मेरा जो केस 2 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे वेंट्रिकल एकदम से फायर करने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से वेंट्रिकल फायर करने हो जाएंगे, तो बंडल ऑफ हिस के थ्रू कंडक्ट नहीं कराएंगे, वेंट्रिकल मस्कुलेचर के थ्रू कराएंगे। हमारी हार्ट की मसल भी फंक्शनल सेंसेशन होती है ना, फिजियोलॉजी, राइट। नहीं आया तो पढ़ लेना, आते हैं क्वेश्चंस गाइस। तो बेसिकली हार्ट के थ्रू अगर यहाँ पे कोई एक्टोपिक फोकाई आ गया, खुद से कैसे भी आया पता नहीं, पर आ गया, तो वो क्या करेगा, पूरे वेंट्रिकल को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन बंडल ऑफ हिस के थ्रू नहीं करेगा, मसल टू मसल के थ्रू करेगा। मसल टू मसल के थ्रू करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, विदाउट बंडल ऑफ हिस में स्लो आएगा। और अगर वही चीज़ बंडल ऑफ हिस के थ्रू होती तो वो फास्ट होती। अब बंडल ऑफ हिस के थ्रू कब हो सकती थी, या तो जब ऐसे नोट फायर करता तो नॉर्मल ये पाथवे, फिर ये, और फिर बंडल ऑफ हिस, या फिर एवी नोट के थ्रू फायर करता था तो ये। अब जब वेंट्रिकल जल्दी या फास्ट डिपोलराइज होंगे तो वो जो इवेंट है वो ग्राफ पेपर में एक लंबा इवेंट होगा कि छोटा इवेंट होगा, ऑब्वियसली एक छोटा इवेंट होगा। अगर वेंट्रिकल, अगेन सुनना, वेंट्रिकल ग्राफ पेपर पे अगर मैं वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन देख रहा हूँ तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ग्राफ पेपर में क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बंडल ऑफ हिस के साथ हो सकता है या विदाउट हो सकता है, ठीक है। अगर वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस के साथ होता है, बंडल ऑफ हिस के साथ में अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है वाया बंडल ऑफ हिस, इस पाथवे के थ्रू होता है, तो क्या होगा कि QRS कॉम्प्लेक्स बहुत छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, नैरो होंगे, नॉट द वर्ड शॉर्ट, वी यूज़ द वर्ड नैरो, ठीक है ना, क्योंकि वो इवेंट तुरंत हो गया। जो इवेंट ग्राफ पेपर में टाइम बाउंड, ग्राफ पेपर पे टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट हो रहा है, अगर वो तुरंत हो रहा है, एकदम से हो रहा है, तो वो छोटा सा इवेंट होगा, तुरंत वो डिफ्लेक्शन आएगी और चले जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर अगर वही इवेंट को होने में टाइम लगेगा तो क्या होगा, विदाउट बंडल ऑफ हिस हो रहा है, अगर यहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही, वो हार्ट के मसल के थ्रू फैल रहा है, तो बहुत धीरे धीरे मसल एक्टिवेट होंगे, तो ग्राफ पेपर में वो इवेंट लंबा सा इवेंट आएगा, है ना, उसका शेप कुछ लंबा सा रहेगा, QRS ऐसा करके कुछ रहेगा। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू कि तो बेसिकली व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर इज कि अगर इम्पल्स बंडल ऑफ हिस के थ्रू है तो QRS जो है वो होती है नैरो। अगर बंडल ऑफ हिस के विदाउट है तो QRS जो होती है वो वाइड होती है, ठीक है। दिस इज़ वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन का मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। नाउ द पॉइंट इज़ कि वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन बंडल ऑफ हिस के थ्रू कब होती है। एग्जाम्पल, जब ऐसे नोड या AV नोड के थ्रू इम्पल्स आ रही हो तो, ठीक है, ये हार्ट था हमारा, सो बेसिकली वी हैव दिस हार्ट। अब यहाँ पे एक ये फोकाई था ऐसे नोड रिदम जनरेट करने का, एक ये फोकाई था AV नोड रिदम जनरेट करने का, दूसरा वेंट्रिकल्स थे, है ना। तो ये दोनों जब अगर एक्टिवेट होते हैं, अगर यहाँ से एक्टिवेट होता है तो ये AV नोड को एक्टिवेट करते हुए बंडल ऑफ हिस में जाएगा, और बंडल ऑफ हिस ये वाला एरिया है ना, और इस ये वाले फाइबर्स, और अगर ये एक्टिवेट होता है तो ये डायरेक्टली बंडल ऑफ हिस के थ्रू जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स बेसिकली वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन जो होगा वो वाया बंडल ऑफ हिस तब होगा जब ऐसे नोड या AV नोड फायर कर रहे होंगे, गेटिंग इट। तब हमारी QRS जो आएगी उसका शेप नैरो होगा, छोटा सा होगा। और अगर डायरेक्टली इम्पल्स यहाँ वेंट्रिकल से जनरेट हो गया तो क्या होगा कि वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन जो होगा विदाउट बंडल ऑफ हिस हो रहा है, वाया मस्कुलेचर हो रहा है बेसिकली ये, है ना। तो वाया मस्कुलेचर जो चीज़ हो रही है उसमें QRS वाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट तुम याद रख लो, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड यू शुड नो दिस। ये समझ गया तो बिलीव मी गाइज, तुमने मोस्ट ऑफ द अरिथमिया डील कर लिया, कुछ बचा नहीं अरिथमिया में, वैसे हम मजाक में ले लेंगे पूरी अरिथमियास को। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बिलीव मी। यस तुम जो सोचो सही, वो हैरिसन का पूरा चैप्टर ख़त्म है अब इसमें, वो पूरा यूनिट। तो ये तुम्हें आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा यूनिट टू
नीड सम गाइडेंस टू बिल्ड दैट अप्रोच, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ये कर लिया। तो बेसिकली हमने ऐसे नोट से रिदम जब जनरेट होती है तो हमने नॉर्मल QRS तो देख ही रखा है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। AV नोट से रिदम जनरेट होगी तो तुम खुद बताओ क्या होगा। AV नोट से रिदम जनरेट होगी तो QRS तो वो होगा नैरो, तो नैरो QRS होगा। नाउ AV नोट से जब रिदम जनरेट होगी तो एक चीज़ ये भी हो सकता है कि AV नोट से रिदम ऊपर भी तो जा सकती है। जो फाइबर से ये आई थी रिदम, ऐसे नोट से AV नोट में आई थी, उन्हीं फाइबर से ये ऊपर भी तो एट्रियल डिपोलराइजेशन भी तो हो सकता है ना। अब एट्रियल डिपोलराइजेशन को अगर तुम लीड 2 में देखोगे, जब ऐसे नोट से इधर की तरफ रिदम आ रही थी तो वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो ये पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब AV नोट से ये चीज़ ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो वो नेगेटिव होगा। रिदम यूँ जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जाएगी। AV नोड के केस में क्या होगा कि एट्रियल डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ में, यहाँ से यूँ जाएगा। तो तुम लीड 2 में जब देखोगे तो तुम्हें पॉजिटिव वेक्टर तुम्हारे से आगे जाता हुआ दिखेगा। तो P वेव्स जो हैं वो इन्वर्टेड दिख सकती हैं तुम्हें, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ प्लस माइनस दिख सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज दिखेगी, क्योंकि व्हेन यू फर्दर डील इनटू दिस थिंग्स ना, तुम पता चलेगा कि दिख जाना इज़ अ किस्मत वाली बात, अगर नहीं दिखती तो फिर वी आर डैम्ड। तो बेसिकली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जस्ट आई हैव स्पोकन ऑफ इट, सो लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर। तुमने रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टडीज़ सुनी है जो लाइक बंडल ऑफ हिस इलेक्ट्रोग्राम होती हैं? इफ़ यू रिमेंबर, तुमने फिजियोलॉजी में बंडल ऑफ हिस के लिए एक अलग से इलेक्ट्रोग्राम होता था, वहाँ उसकी नीड पड़ती है हमें यहाँ पे इस चीज़ में का प्लस माइनस जो मैंने लिखा है ना उसमें। सो बेसिकली इफ़ यू वांट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ अ होल न्यू टॉपिक, पूरा अपने आप में कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर तुम चाहते हो तो एक वीडियो में उसमें भी डिस्कस कर सकता हूँ। लव टू डिस्कस दिस पार्ट, दिस इज़ बहुत अच्छा टॉपिक। बट एनीवेज, अभी वी शुड नॉट फॉरगेट कि यू गाइज आर फाइनल ईयर्स एंड वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, ठीक है ना। तो वो AV नोड में होगा तो बस तुम इतना ध्यान रखना कि QRS नैरो होगी, P वेव्स इन्वर्टेड होगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होगा, वेंट्रिकल पे रिदम आएगी, वेंट्रिकुलर रिदम आएगी तो वाइड QRS होगा। ये तुम्हें समझ आ गया ना? समझ कुछ नहीं रखा है, ये तुम्हारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली इसको मैं एक समरी के फॉर्म में बना दूँ तो तुम्हें क्या करना है, लेवल P वेव QRS, इस पर ध्यान देना। पॉजिटिव रहेगा, QRS नैरो रहेगा। अगर AV नोड है, एक्चुअली AV नोड की वजह ना वी शुड बी यूजिंग वर्ड जंक्शन। AV नोडल जंक्शन होता है ना, एट्रोवेंट्रिकुलर जंक्शन होता है, तो वहाँ पे P वेव नेगेटिव हो सकती है और एब्सेंट हो सकती है एंड QRS वुड बी नैरो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वरना मज़ा ही क्या है। ऑब्वियसली यार कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो फिर मज़ा क्या है। नाउ अगर वेंट्रिकुलर रिदम आ रही है, रिदम तुम्हारी वेंट्रिकुलर लेवल पे हो रही है, P वेव्स ऑलवेज एब्सेंट, QRS वाइड। तो बेसिकली अब मुझे बताओ कि एक दिस इज़ तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसको भी तुम कॉपी कर लो। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे बस तुम कभी तक ये कॉपी कर रहे हो और एक मैंने तुमसे ये कॉपी करवाया था, विच बेसिकली इसी का फर्दर वो छोटा वाला नीचे वाला बॉक्स है। तो ये जो चीज़ तुमने दो चीज़ तुमने कॉपी कर ली। अब हम चलते हैं वॉट यू वर ईगरली वेटिंग फॉर, दैट इज़ अप्रोच टू ACT। अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो टेबल मैंने बनाया था तुम्हारे साथ में ECG पेपर में, ये वाला टेबल जो मैंने बनाया, इसमें मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ECG आया है ना, लीव द डायग्नोसिस। आई जस्ट वांट कि तुम मुझे ये बताओ कि उस ECG पेपर में जो इम्पल्स आ रही है वो किस लेवल से आ रही है। तुम्हारे पास 3 चीज़ है, तो मुझे तुम ये बताओ, मतलब जस्ट टेल मी, अगर तुम वर्ल्ड के पहले बंदे होते जो ECG का अप्रोच बना रहे होते तो हाउ वुड हैव यू मेड द अप्रोच? पहले तुम P वेव को ढूंढते कि पहले QRS को ढूंढते? बिकॉज डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर तो यही 2 चीज़ है ना, इन तीनों के उसमें कुछ या तो ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है या ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है। तो वैसे तुम जो ईजी है उसको पहले देखोगे ना यार, ह्यूमन टेंडेंसी लो तो QRS। जब भी ECG का पेपर आएगा तो हम क्या करेंगे, ECG का जब भी पेपर आएगा, नॉर्मल ECG तुम्हारे सामने कभी भी आई है, ठीक है,
तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले उस ECG को देखोगे एंड दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि कैसे अप्रोच करना है। लेट्स टॉक, बहुत छोटा सा टॉक लेते हैं अप्रोच ऑफ द ECG, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली। तो देखो यार, अप्रोच बहुत होते हैं, हर चीज़ का अलग अप्रोच होता है, हर किसी का अपना अलग अप्रोच होता है। व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज़ व्हाट माय सीनियर्स हैव टॉट मी एंड व्हाट आई हैव लर्नड ऑल दिस वाइल, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, आई एम स्टिल लर्निंग, बट सो फार जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगा एंड जिस इस अप्रोच से व्हेन आई हैव टॉट माय जूनियर्स उन्हें कंफर्टेबल लगा, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस अप्रोच। एंड तुम जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इसमें डील करोगे, बहुत अप्रोचेस आएंगे। एज दे से इन मेडिसिन दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट यस एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नो, तो दिस इज़ नॉट दी ओनली अप्रोच एंड दिस इज़ नॉट दी बेस्ट अप्रोच। I don't say anything about it. I'm just telling that this is just another approach, and you should be comfortable with whatever approach you're using. So I'm just telling you this, and you can, if you already have an approach, take some points from this which you think you were missing, and if you have some good points, please text me. So basically, how to approach a normal ECG. Suppose you have a normal ECG. What I do is, first is I just look at the ECG and I ask myself, what is the feel? वो था ना तुम्हारी पिक्चर में हाउस द जोश, सो बेसिकली फ्रॉम देयर, कॉपीड फ्रॉम देयर, टोटली कॉपीड बेशर्मों की तरह, हाउस द फील, राइट? वी आस्क हाउस द फील। आई हैव नो आइडिया ओनली कि ECG में है क्या, डायग्नोसिस क्या। आई जस्ट लुक एट द ECG पेपर एंड आई आस्क फील कैसे ब्रो, बिकॉज दैट गिव्स मी अ लिटिल इंसाइट, क्योंकि फील इज़ जस्ट एक बाहर से बहुत डीपली ना जाते हुए ECG को बस यूँ देखना कि इसमें कुछ सब कुछ नॉर्मल दिख रही है, कुछ ऊपर से चीज़ें दिख रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही हैं, तो दैट इज़ द थिंग, हाउस द फील। अगर इफ़ यू हैव अ गुड फील अबाउट द ECG, फाइन, एंड इफ़ यू हैव समथिंग बैड अबाउट फील अबाउट द ECG, तो फिर तुम थोड़ा और उसके बारे में डिटेल में देखोगे, तो एक जस्ट एक ओवरव्यू। दिस इज़ समथिंग आई एम टोटली टेलिंग यू, बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत प्रैक्टिस के बाद में आता है, तो बट दिस इज़ समथिंग आई फेल्ट कि बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन इमरजेंसीज में होते हैं एंड वी हैव सो मेनी पीपल कमिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द ECG, समटाइम्स जस्ट लुक एट द ECG एंड यू जस्ट गिव ओवरव्यू कि क्या फील है। अगर कभी कभी ECGs में बहुत सटल चीज़ होती हैं जो मिस हो जाती हैं, और तुम क्विक लुक देखोगे सारा ECG देखने के बाद में वापस से, यू आई टेल यू माई लास्ट स्टेप इज़ ऑल्सो अगेन द हाउस द फील, हियर टू हियर, इस बीच में हम टेक्निकल मेथड्स में जाएंगे, बट दिस इज़ हाउस द फील, जो तुम पहले देखते हो लास्ट में भी देखोगे, और इससे बहुत सारी सडन चीज़ें मिस नहीं होती, क्योंकि समहाउ तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी जिससे तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, एंड दैट एनॉमली, दैट गड़बड़ वही पकड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। देन टिपिकल जो तुम पढ़ते हो ECG में हार्ट रेट कैलकुलेट करना, ठीक है। एक होता है ECG में रेगुलरिटी देखना कि इज़ इट द रिदम रेगुलर और इरेगुलर, रादर पहले ये देखो तुम रेगुलर है कि इरेगुलर है रिदम, ठीक है। थर्ड इज़ कि व्हाट इज़ द हार्ट रेट, तो दिस वे विल अप्रोच टू द ECG कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउस द फील, उसके बाद में विल सी कि ECG का रिदम रेगुलर लग रहा है कि इरेगुलर लग रहा है, सब कुछ बराबर आ रही है कि नहीं। सो हाउ यू सी दैट रेगुलर और इरेगुलर रिदम, डू यू गाइज नो? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, मैंने तुम्हें कहा बेसिक्स ऑफ ECG देखने में। बेसिकली इसको तुम जहाँ से भी देखो, जस्ट रिमेंबर कि वो दो लाइन्स ड्रॉ करके जो पेपर में देखते हैं ECG पेपर को, वो तुम्हें आना चाहिए। नहीं आता प्लीज़ टेक्स्ट मी, मैं तुम्हें अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर, बहुत कुछ कवर करना है नीचे। नाउ द पॉइंट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसे पता करते हैं, ये तो छोटी सी बात है, तो बता ही दूंगा मैं। RR इंटरवल बाय आई एम सॉरी 300 अपॉन RR इंटरवल टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। Basically this is heart rate when RR interval is represented in terms of number of large boxes, so this is basically our heart rate। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो तुमने हार्ट रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद तुम क्या देखोगे अप्रोच टू ECG में, वी वांट टू सी ECG में जो रिदम आ रही है वो किस लेवल पे आ रही है। रिदम जनरेशन लेवल क्या है हमारे पास में, ठीक है। लेवल क्या क्या हो सकते थे, एट्रियल लेवल हो सकता था, जंक्शनल लेवल हो सकता है, वेंट्रिकुलर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल का यूज़ करेंगे।
अब इस टेबल में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या थी? अगर मेरे को 2 पॉइंट से डिफरेंशिएट करने को इन तीनों को, या तो पी वेव्स के बेसिस पे करूँ या क्यू वेव्स के बेसिस पे करूँ, तो ऑब्वियसली आई विल लुक एट द क्यू आर एस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि क्यू आर एस कैसी है हमारी, ठीक है। अब हमारे पास में ई सी जी पेपर है, एक रिदम है ई सी जी की, इसमें मैं क्यू आर एस लिखूँगा। तो ओके, सो नाउ हमारी क्यू आर एस के बेसिस में मैं देखूँगा कि लेवल ऑफ रिदम क्या है। तो क्यू आर एस अगर वाइड होगी तो मुझे पता है कि इसका लेवल क्या है, वेंट्रिकुलर हो सकता है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हो सकती है, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा इसका नाम। नाउ नैरो होगा तो या तो ये एट्रियल लेवल की बातें चल रही हैं या फिर जंक्शनल लेवल की, ठीक है। तो अब हम इसको डील करेंगे इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली अच्छा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि पी वेव्स को देखेंगे। पी वेव्स अगर एब्सेंट है या फिर नेगेटिव है तो ये जंक्शनल रिदम था। अगर पी वेव्स प्रेजेंट है तो ये एट्रियल रिदम था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं, वो हो सकती हैं यहाँ पे, फाइन। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वेंट्रिकुलर रिदम, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय एट्रियल रिदम, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय जंक्शनल रिदम, एंड व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या है। यही है हमारा पूरा वो हैरिसन का चैप्टर। तुमने ये समझ लिया तो तुमने सब कुछ कर लिया। अब इंडिविजुअल इसकी हम ना डिफरेंशियल्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर में कुछ कुछ आते हैं, उनको देखेंगे और उनको डील करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। तो हम एट्रिया में देखते हैं सबसे पहले। लेट्स सी व्हाट आर आवर एट्रियल रिदम्स। तो व्हाट वी आर डूइंग इज एट्रियल रिदम। एट्रिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेल मी। एट्रिया में सबसे पहले ऐसे नोड फायर करें तो ऐसे नोड की रिदम हो सकती है पहली। दिस विल ऑल्सो बी नोन एज नॉर्मल साइनस रिदम, ऑल्सो नोन एज NSR। इस वीडियो में आगे से हम NSR कहेंगे इसको। एट्रिया में और क्या हो सकता है, ऐसे नोड से ही फायरिंग हो रही है। अब सपोज ऐसे नोड से फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, साइनस टेकीकार्डिया होगा, एग्री। अब सपोज ऐसे नोड से फायरिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, एट्रियल फ्लटर हो सकता है। और क्या हो सकता है एट्रियल लेवल की रिदम, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। गाइस व्हाट इज फिब्रिलेशन? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वर्ड, इंग्लिश वर्ड फिब्रिलेशन। इसका क्या मतलब होता है, फड़फड़ाना, राइट। लिटरली इट मीन्स कि वो फिब्रिलेट कर रही है, बहुत ही फाइन मूवमेंट्स आ रहे हैं उसमें। बस यूँ एट्रिया, अगर एट्रिया का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूँ करके यूँ हो रहा था तो अब ये यूँ हो रहा है। बस इतनी स्पीड में हो रहा है सब कुछ, नहीं इतना केओस मचा हुआ है, इतनी स्पीड में हो रही है, लिटरली मच रखी है अंदर में। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि एट्रिया को इतना भी टाइम नहीं कि ढंग से कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करे, बस करना है उसको। तो बस यूँ इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, दौड़ा बस दिए पड़ी। तो दिस इज़ लाइक हार्ट रेट बहुत हाई लेवल में, नॉट हार्ट रेट, ऐसे नोट का रेट बहुत हाई लेवल में। इनफैक्ट वैसे 3 टर्म्स होती हैं। जस्ट फन फैक्ट, तुम्हें फाइनल ईयर्स को पता होता नहीं है, वाइवा में ऐसी तैसी करके आ जाते हो। एक वेंट्रिकुलर रेट होती है, एक पल्स रेट होती है, ठीक है, और एक ऐसे नोट की रेट होती है, ठीक है। ये पता करना क्या होता है। जो फाइनल ईयर का बैच मेरे से केस डिस्कस किया हुआ है उनको मैं जनरली ये बताता हूँ, फर्स्ट आई आस्क देम, देन आई मेक देम आंसर द रॉन्ग थिंग, देन आई टेल देम। तो बेसिकली उनसे पूछना कि ये क्या होता है। कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो ऐसे नोड में एट्रिया में ये 3-4 रिदम ये हो गए। उसके अलावा कुछ एक ना कंडीशन होती है एट्रियल टेकीकार्डिया। नाउ यू विल आस्क कि साइनस टेकीकार्डिया और एट्रियल टेकीकार्डिया में क्या डिफरेंस है। बच्चे क्या होता है ना कि ऐसे नोड तो यहाँ रिदम, एट्रियल रिदम तो यहाँ से कहीं से भी रिदम जनरेट होने हो गई। ये जो 4 हैं इसमें रिदम ना, ये जो 4 हैं ऊपर के 1 2 3 4, उसमें जो रिदम है वो ऐसे नोट से जनरेट हो रही थी, एट्रिया के भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से जनरेट हो रही थी। फिर कुछ कंडीशन ऐसे होंगी जिसमें एट्रिया में जो रिदम है वो किसी और पॉइंट से जनरेट हो रही है। तो जैसे कि उसमें से एक कंडीशन है कि एट्रियल टेकीकार्डिया, एक कंडीशन है मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया। तो उसमें क्या होगा, इसमें तो क्या होगा कि एट्रिया का कोई एक और पॉइंट होगा, वो उसी पॉइंट से बार बार बहुत स्पीड में रिदम जनरेट होगी, एट्रियल टेकीकार्डिया। दिस इज़ द पॉइंट कि एट्रिया में बहुत सारे फोकाई हो जाएंगे, उनसे रिदम जनरेट होगी, तो मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया,
ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन है, एट्रियल कंडीशन, जिसमें हम देखेंगे इन सब में क्या होगा, पी वेव्स प्रेजेंट रहेंगी, एक को छोड़ के ना, ये जो है ना इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। तो पी वेव सब में प्रेजेंट रहेंगी प्लस नैरो क्यू आर एस रहेगा। तो इनको आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हम देख लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं हमारे पास में जंक्शन में क्या क्या रिदम हो सकते हैं, जंक्शनल रिदम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ना 3 लेवल में बांटते हैं, जंक्शनल रिदम के नॉलेज को 3 लेवल में करते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर फाइनल ईयर्स, ठीक है। फाइनल ईयर्स मुझे, मैं मानता हूँ फाइनल ईयर्स को मैं बहुत बेसिक वाले लेवल में बताना चाह रहा हूँ। तो फाइनल ईयर्स का लेवल हो गया, सेकेंड इज़ इंटर्न्स का लेवल, एंड थर्ड इज़ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो इन 3 लेवल में हम जंक्शनल रिदम को का एक ओवरव्यू लेते हैं अभी कि क्या क्या इसमें पॉसिबल है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इंडिविजुअली देखेंगे, नॉट्स अबाउट कि जंक्शनल रिदम को हम कैसे पता करेंगे। तो जंक्शनल रिदम फाइनल ईयर्स तुम्हारे लिए यार ये है कि जितने भी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज हम कहते हैं ना, इन अ वे वो जंक्शनल रिदम है, इन अ वे। तो बेसिकली सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज, ठीक है, क्या होता है, इसका एग्जांपल है पीएसवीटी। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जंक्शनल रिदम्स, एंड इसको मैंने कहा था कि मैं 3 लेवल में डिस्कस करना चाहता हूँ, एक फाइनल ईयर्स के लिए, एक इंटर्न्स के लेवल पे, और एक पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे। फाइनल ईयर के लिए तो आई जस्ट वांट टू कि जंक्शनल रिदम का एग्जांपल होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें क्या आता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसके आगे तुम देखोगे नहीं देखना है, परेशान हो जाओगे, नोप्स, इतना ही देखो, खुश रहो, इतना समझ लो, लाइफ चिल लो। तो बेसिकली फाइनल ईयर्स तुम्हारे लिए कि यू शुड नो व्हाट इज़ अ पीएसवीटी। पीएसवीटी इज़, नाम में काम है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पैरोक्सिस्मल रिदम है जो आता है और अपने आप चला जाता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं इसलिए पढ़ना पड़ता है। सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से ऊपर जनरेट होने वाली रिदम है, और मोस्टली ये जंक्शनल लेवल पे जनरेट होती है। इसलिए सुप्रावेंट्रिकल में तो 2 चीज़ें आ जाती हैं, एट्रियल भी आती है, जंक्शनल भी आती है, बट मोस्टली ये जंक्शनल लेवल पे जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। और टेकिकार्डिया तो है ही, बेसिकली पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसमें क्या खास बात होगी जंक्शनल रिदम्स में, बोलो। इनमें पी वेव्स एब्सेंट होंगी या फिर नेगेटिव होंगी, क्यू आर एस नैरो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। फाइनल ईयर्स तुम्हारे लिए हो चुका है, तुम स्किप कर सकते हो थोड़ा सा आगे वीडियो, जहाँ पे मैं वेंट्रिकुलर रिदम के बारे में 1-2 लाइन कहूँगा, बाकी इंटर्न्स तुम्हारे लिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने कहा इनको कि एट्रियल लेवल या जंक्शनल लेवल पे हो सकती है, तो एट्रियल लेवल पे जो रिदम होगी, पीएसवीटी की रिदम सुप्रावेंट्रिकुलर था ना, तो सुप्रावेंट्रिकुलर के 2 पार्ट हो सकते थे, या तो एट्रियल या जंक्शनल। एट्रियल लेवल पे अगर वो चीज़ हो रही है, बिकॉज ऑफ एट्रियल लेवल में कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से पीएसवीटी बन रहा है, तो दैट इज़ नोन एज एट्रियल टेकिकार्डिया। जो अभी मैंने तुम्हें एट्रियल रिदम्स बताए थे ना, उसमें से जो एट्रियल टेकिकार्डिया है ना, ये कुछ केसेस में एज अ पीएसवीटी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नाउ अगर वो चीज़ जंक्शनल लेवल पे हो रही है ना, तो वो ABNRT एंड ABRT कहलाएगी। तो ऑब्वियसली अगर पीएसवीटी ड्यू टू एट्रियल टेकिकार्डिया है, तो उसमें पी वेव्स प्रेजेंट होगी, पॉजिटिव होंगी, है ना, गेटिंग इट। सो इट इज़ नॉट दैट एवरी पीएसवीटी इज़ हैविंग द सेम दिस वाला चीज़ ना, पी वेव्स एब्सेंट है और नेगेटिव है। ये जो मैंने फाइनल ईयर्स को बताया है, ये इसके लिए बताया है बेसिकली, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीएसवीटी होते भी। तो फाइनल ईयर्स के लेवल पे है, तुम्हारे लेवल पे तुम्हें समझो थोड़ा सा कि एक ये एक्सेप्शनल केस होता है। तुम भी वैसे यही समझो मेनली कि जंक्शनल रिदम जो होती है वो 2 टाइप के मेथड ऑफ जनरेशन से बनती है, कि जंक्शनल रिदम बनी कैसे, उसके हिसाब से हम उसको ABNRT या ABRT कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी, इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं। ABNRT एंड RT क्या है, ये री एंट्री, आर वर्ड का मतलब होता है री एंट्री टेकिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया। तो ये AB नोड के लेवल में कोई री एंट्री हो रही है, उसका टेकिकार्डिया है। और ये व्हाट इज़ दिस री एंट्री टेकिकार्डिया, नया क्या आ गया, तो देखते हैं। ऐसे नोड, AB नोड, वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके रिदम आ रहा था, ठीक है, और जनरेट हो गया था। अब हमने इसको क्या किया, एनलार्ज किया। तो जो AB नोड था ना, वो बेसिकली ऐसे नोड से रिदम आता है, ठीक है, ये ऐसे नोड है मान लो, या एट्रिया है मान लो,
एट्रिया से रिदम आया, ठीक है, एट्रिया से रिदम आ रहा है, इट इज़ ऑल कमिंग लाइक दिस फ्रॉम एट्रिया टू एवी नोड में, सबके सब कन्वर्ज हो रहे हैं, एवी नोड में सब रिदम कन्वर्ज होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एवी नोड कोई एक सिंगल नोड नहीं है, तुम ऐसे समझो कि एवी नोड एक सिंगल सा नोड नहीं है। एवी नोड को हम कहते हैं कि बहुत स्लो टिश्यू है, स्लोवेस्ट कंडक्शन है, इसकी वजह से पीआर इंटरवल आ जाता है, कंडक्शन डिले होता है। इतना बदनाम क्यों है? क्योंकि इसका जो टिश्यू को अगर तुम फर्दर इसको डिसेक्ट करोगे, एनाटॉमिकली देखोगे ना, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। एवी नोड जो है एक बड़ा सा बॉल था हमारे मन में आज तक एवी नोड में, उस एवी नोड के अंदर में दो पाथ है, बेसिकली दो रोड्स हैं जिसके थ्रू रिदम जाता है। एक रोड ऐसा करके है और एक ये इस फॉर्म में, ठीक है ना। इन टर्म्स आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी वेरी सुपरफिशियल एग्जांपल कि ये क्या है। ये जो चीज़ है इसको तुम इतना डिटेल मत जाना, बस समझो कि दो पाथवे हैं। अब इस पाथवे और फिर वो फर्दर बंडल ऑफ हेस में जाते हैं। तो अगर कोई भी रिदम एट्रिया से सारी कलेक्ट होकर जो रिदम आती है वो ये दो लेन के थ्रू जा सकती है। तो मैं रोड के एग्जांपल से समझो कि मल्टीपल स्मॉल रोड से रिदम्स आई, यहाँ पे आई, ये अब यहाँ पे सिर्फ दो लेन के थ्रू जा सकती है बंडल ऑफ हेस में। अब इसमें जो ये वाली लेन है ना, राइट साइड वाली, वो होती है स्लो, और जो लेफ़्ट साइड वाली होती है वो होती है फास्ट। समहाउ इस रोड की क्वालिटी अच्छी है तो ये तुरंत चले जाती है, इसकी ख़राब है तो ये धीरे धीरे जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ मुझे। नॉर्मली तो रिदम आएगी, इसमें के थ्रू चले जाएगी, इसके थ्रू आएगी, लेकिन क्या होगा कि इसके थ्रू जैसे ये गई उसके बाद यहाँ पे रिदम ये वाली आई है, तब तक ये वाला जो पार्ट है वो डीपोलराइज हुआ था, अब रीपोलराइज हो रहा है। तो पर रिफ्रैक्टरी पीरियड में, एग्जांपल रिदम आई, दो पार्ट में बटी, इसकी तुरंत चले गई, उसके सपोज कुछ सेकंड बाद में ये वाली रिदम आई यहाँ पे, तब तक ये पूरा पाथ रिफ्रैक्टरी पड़ा था, तो रिदम आगे जनरेट हुई नहीं, मतलब आगे गई नहीं, तो सिर्फ ये वाला ही कंडक्ट हुआ, ठीक है। नॉर्मल ये होता है। अब सपोज ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए कि इसका जो स्लो है, स्पीड है, वो और स्लो हो जाए, है ना, इसकी स्पीड और स्लो बढ़ जाए, स्लोनेस इसकी बढ़ जाए, तो जब ये रिदम यहाँ पे पहुँचेगी तब तक ये अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी कंप्लीट कर चुका होगा। इट वुड हैव कंप्लीटेड इट्स रिफ्रैक्टरी पीरियड। या ये ना तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, नीदर इट इज़ इन इट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ना एआरपी में ना आरआरपी में। जब इसमें नहीं है तो ये रिदम इधर भी जा सकती है, राइट, जाएगी, जा सकती तो जाएगी, जो होना है वो होगा। ये रिदम ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इस पाथवे में उल्टा कंडक्शन भी करा सकता है, समझ रहे हो। तो इस कंडक्शन तुरंत यहाँ पे जाएगा रिदम। अब देखो, यानी कि अगर मैं देखूँ कि ये स्लोनेस बढ़ गई है, सारे एट्रियम से रिदम आई, ये भी नोड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रिदम पहले इसमें से जाती है, उसके बाद इसमें थ्रू धीरे धीरे कंडक्ट होती है। नॉर्मल केसेस में क्या होगा कि जब रिदम इसमें से आके ये क्यूआरएस में कन्वर्ट हो चुकी है, जब इसमें से आई रिदम यहाँ पे, तो ये जो है जब यहाँ पे पहुँचता है तब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में होता है। ये इतना ही स्लो होता है कि इसके रिफ्रैक्टरी पीरियड में होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक रिदम आ गई, एक क्यूआरएस जनरेट हो गया। लेकिन AVNRT में क्या होगा, रिदम आई, समहाउ इसकी स्लोनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये तो तुरंत आके QRS दे गई है, तो फर्स्ट QRS आ गई है हमारे पास में। अब ये इतनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, ये वेरी स्लो है, तो जब ये यहाँ पर आती है तो ये अपनी रिदम, ये जब यहाँ पर आती है तो ये अपना RRP और ARP जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसको पास आउट कर चुका होता है। तो वापस से ये एक्साइटेबल पाथवे बन चुका होता है। एक्साइटेबल पाथवे ये वाला भी और ये वाला भी। तो रिदम यहाँ पर आएगी तो नीचे की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ भी जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ में जाएगी, यहाँ पे तुरंत जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जो AV नोड एट्रिया से जो आ रहे थे रिदम, वो टिश्यू भी अब एक्साइटेबल है। ये यहाँ पे तो फास्ट पाथवे ना, तो जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है तुरंत ही यहाँ पर भी होगा, तो तुरंत रिदम ऊपर की तरफ भी जाएगी। गेटिंग इट। तो रिदम हमारे पास में नीचे भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है। तो जैसे ही नीचे की वजह से QRS आएगा, ऊपर की तरफ जाने की वजह से एक नेगेटिव P वेव आएगी, ठीक है। अब क्या बात होगी कि हमारे पास में सबसे पहले एक QRS, नॉर्मल QRS आया, ठीक है, ये तो जब फास्ट पाथवे से कंडक्ट हुआ। उसके बाद में एक स्लो पाथवे की वजह से एक वापस से नैरो कॉम्प्लेक्स QRS आएगा, ठीक है, प्लस एक इन्वर्टेड P वेव आएगी जो ऑलमोस्ट इसके साथ ही रहेगा, जो कि फास्ट पाथवे के थ्रू तो कंडक्ट हो रही थी ना, फास्ट पाथवे के थ्रू यू करके यू गई थी। तो जो P वेव होगी वो ऑलमोस्ट या तो QRS के जस्ट बाद होगी या फिर विद इन QRS ही हो सकती है। तो ये खास बात है कि AVNRT में नैरो कॉम्प्लेक्स QRS होगा with P wave which would be obviously inverted, तो inverted P wave just after QRS, ठीक है। इनफैक्ट अगर इंटर्न्स तुम्हारे लिए, वैसे बहुत हाई लेवल की बात है, आई डोंट थिंक सो कि तुमसे पूछा जाएगा, बट अगर कहीं पूछा जाता है
इस P और R के बीच में इफ़ वी फाइंड आउट एन इंटरवल, ये P Q R S एंड T होता है ना, सॉरी गाइस जस्ट अ मिनट, तो ये P Q R S T हुआ, तो अगर मैं, और ये नेक्स्ट वाले वेव का P Q R S T हुआ है ना, तो अगर मैं इस R और इस P के बीच का इंटरवल देखूं तो ये क्या हो रहा था, पहले Q R S आई, उसके बाद में P वेव आ रही थी यहाँ पे, ये जो P वेव है वो यहाँ पे आने लग गई, राइट, नैरो कॉम्प्लेक्स Q R S हुआ, फिर P वेव जो कि रिदम यहाँ से जनरेट होनी स्टार्ट हुई थी ना, री एंट्री वाली मैं बता रहा हूँ बेसिकली, यहाँ तो ये हो चुका, अब हम यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले Q R S आया, फिर एक P वेव आएगी, वो P वेव जस्ट आफ्टर Q R S आ रही, तो R टू P का जो इंटरवल है, जो नेक्स्ट P आ रही है, वो बेसिकली क्या हो रही है, वो इंटरवल शॉर्ट हो जा रही है, क्योंकि P वेव जस्ट आफ्टर ये आ रही है। ये AV NRT का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो RP इंटरवल है वो RP लेस देन 70 मिली सेकेंड इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AV NRT। बेसिकली ये कहा जाता है कि जो P वेव है वो इतनी जस्ट बाद Q R S आती है, या इनफैक्ट जस्ट Q R S के साथ आती है कि Q R S में ही बरीड हो सकती है। अभी हम थोड़ी देर में बात पढ़ेंगे AV RT, उसमें ये कैरेक्टर होता है कि वो जो होता है उसमें थोड़े बाद आती है। तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि AV NRT कैन समटाइम्स बी सीन विदाउट P वेव, बिकॉज P वेव Q R S में बरीड हो चुकी है, बट AV RT विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय Q R S ऑफ AV RT विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ P वेव। हैरिसन ये कहती है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना, क्योंकि ये इतना फास्ट कंडक्ट हो रहा है कि P वेव साथ में ही हो जाती है, तो हमें मिलती नहीं है। आई गेस आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। सो व्हाट आई टोल्ड यू बेसिकली इज टू समराइज कि वी हैव वन इज जंक्शन रिदम में AV NRT, ठीक है, देन वी हैव AV RT, ठीक है। AV RT के अंदर में मैंने बताया तुम्हें कि वो हो सकता है एंट्रोग्रेड वाया AP या फिर रेट्रोग्रेड वाया AP हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही से तुम्हारा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का भी कॉन्सेप्ट आता है। इनफैक्ट तुम लोग अगर इंटर्न से रिलेट कर सकते हो तो तुम पीडियाट्रिक्स वगैरह में पढ़ते होगे ना कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जिसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड PSVT के चांसेस मिल जाते हैं। वो एंड बाय कोइंसिडेंट नहीं है, बिकॉज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की जो पैथोलॉजी वो यहीं से है और हम PSVT डील कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ना, इनफैक्ट दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू कि कौन से ऐसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं जिसमें कि PSVT और WPW के अक्रेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, इनफैक्ट हाईएस्ट मिलते हैं, पढ़ना। और वैसे ज़रा सा भी इफ़ यू कैन पुट योर लॉजिक, ऐसा क्वेश्चन अचानक से आगे एग्जाम में तो क्या करोगे, लॉजिक, जंक्शन की बात चल रही है तो वैसे सेंड ऑफ देखो जो जंक्शन को हिट कर रहे हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं है। चलो, सो बेसिकली जंक्शन रिदम को हम इन लेवल्स पे डील करेंगे, ठीक है ना। तो AV NRT हो सकता है, AV RT हो सकता है। अब AV NRT में क्या हो रहा था कि AV नोड के अंदर में ही एंट्री सर्किट बन रही थी, और जो QRS जो था उसके बाद में P वेव आ रही थी, और वो जो P वेव आ रही थी वो कैसे आ रही थी, इमीडिएटली, क्योंकि फास्ट पाथवे के थ्रू जा रहा था, तो जैसे ही यहाँ से स्लो पाथवे गया, Q आया, तुरंत बाद फास्ट हो गया था। तो फास्ट से जो P आई थी वो जस्ट आफ्टर द Q आ गई थी, तो P जस्ट आफ्टर Q आएगा, या फिर P इतना आफ्टर QRS आता है, QRS है, या P विद QRS आ जाता है, ये बहुत कॉमनली हो जाता है। इसमें नहीं होता, इसमें क्या होगा कि AV नोड तो यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे नोड यहाँ पर है। अब क्या होगा कि यहाँ से रिदम आई इसमें, अब यहाँ से सपोज को ऐसा करना है, तो बंडल ऑफ इसके थ्रू जा रही है, तो हमारे पास में QRS तो नैरो रहेगी, वैसे भी जंक्शन रिदम की बात कर रहे हैं। P वेव जो है वो इसके थ्रू जब तक जाएगी, बड़ा सा लंबा सा पाथ करेगी, उसके बाद में फिर ये P वेव देगा, इस वाले ड्यूरेशन पे P वेव देगा, तो ऑब्वियसली P वेव हमारी जो है ना वो कभी भी QRS के साथ में नहीं होगी। P अगर आ रही है दैट इज़ अ इन्वर्टेड P, इसमें भी P इन्वर्टेड चल रही है ना, जो कि हम जंक्शन रिदम की बात चल रहे हैं, तो इन्वर्टेड P वेव जो रहेगी वो ऑलवेज आफ्टर QRS रहेगी। मस्त पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। सो बेसिकली was telling is कि we were telling about this कि जंक्शन रिदम AV NRT, AV RT, एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड वाया एसेसरी पाथवे हमने देख लिया। AV RT की कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगा कि इन्वर्टेड P वेव्स आएगा और वो ऑलवेज आफ्टर QRS आएगा। इसमें इट कैन कोइंसाइड विद QRS, जस्ट आफ्टर QRS आता है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि
ये सारा हम जंक्शनल रिदम की बात कर रहे थे। इसका कॉमन चीज़ ये तो रहेगा कि क्यू आर एस जो है वो नैरो रहेगी और पी वेव इन्वर्टेड आएगी। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या पॉइंट यूज़ किया कि पी आर एस का जो ड्यूरेशन है वो जस्ट आफ्टर है कि और थोड़ा रुक के करके, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज़, एक और कॉन्सेप्ट आती है गाइस यहाँ पे कि क्यू आर हमारा नॉर्मल चीज़ क्या बना था, पी क्यू आर एस और टी बन रहा था। उसके बाद में एक नया पी वेव आता था, है ना, दिस इज टी दिस इज पी, और उसके बाद में फिर हमारे पास में क्यू आर एस आ रही थी। एक तो तुमने पी आर इंटरवल सुना हुआ है ना, जो ए बी नोडल डिले बताता है। एक ना आर पी इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट होता है। पी आर तो तुम्हें पता है, इंटर्न्स टॉकिंग टू यू गाइस, फाइनली इसको अप्लाई करना है। बट ये जो आर पी इंटरवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर पी इंटरवल क्या होता है कि आर और नेक्स्ट पी वेव के बीच का इंटरवल है। पी आर तो पी और नेक्स्ट आर वेव के बीच का था ना। इसका रिलेशन को देख के कि इज़ आर पी ग्रेटर देन पी आर या पी आर ग्रेटर देन आर पी, वी कैन डिड्यूस सम सर्टेन थिंग्स। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे कभी छोटा हो सकता है पी आर से। बाय गाइस, हम किस स्पेक्ट्रम में हैं हार्ट डिजीज़ के, टेकी एरिथमियाज में। टेकी एरिथमियाज में क्या होगा, टेकी एरिथमियाज में हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ेगा तो डायस्टोल से का टाइम डिक्रीज होता है कि सिस्टोल का, डायस्टोल का। डायस्टोल फेज़ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन था, तो बेसिकली सिस्टोल आ गया इसके जज्बा। तो यहाँ कहीं पे डायस्टोल हो रहा है ना, तो ये इंटरवल शॉर्ट होगा टेकी एरिथमियाज में। तो टेकी एरिथमियाज में ये शॉर्ट हो जाता है, इतना शॉर्ट हो जाता है कभी कभी कि पी आर से भी शॉर्ट हो सकता है। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि पी आर पी इंटरवल हमारा कंपेयर टू पी आर शॉर्ट है कि लॉन्ग है, हम उसको कुछ इनको ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो जब हमारा आएगा एल्गोरिदम, जब तुम्हें फाइनल एल्गोरिदम दूंगा वहाँ पे देख लेंगे। तो बेसिकली जंक्शन रिदम में तुमने देख लिया कि हम क्या क्या देख सकते हैं। पीएसवीटी और पीएसवीटी के अंदर में वो एट्रियल टेकीकार्डिया बहुत रेयर केसेस में, मोस्टली एवीएनआरटी के, और दूसरा एवीआरटी। एवीएनआरटी के अंदर में हमने क्या देखा, एक तो स्लो फास्ट पाथ भी हो सकता था, एक फास्ट पाथ भी हो सकता था, एक स्लो पाथ भी हो सकता था, ठीक है। और ए बी आर टी के अंदर में एंट्रोग्रेड वाया ए पी, रेट्रोग्रेड वाया ए पी, ठीक है। और अब हम वेंट्रिकुलर रिदम या वाइट कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस की तरफ में जाते हैं। तो बेसिकली वाइट कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कब होगा, जब वेंट्रिकुलर रिदम आ रही है। वेंट्रिकुलर रिदम कब आएगी, जब वेंट्रिकल जनरेट करेंगे रिदम। तो वो कब हो सकता है, जब वेंट्रिकुलर बोलो टेकीकार्डिया हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स आ रहे हो। एक्टॉपिक्स पता है क्या होता है, चलो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये इंटर्न्स को पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन फ्रिक्वेंटली दिख भी जाते हैं यार। एक्टॉपिक में एक सिंगल बीट को कहते हैं, ये सब तो रिदम है, कंटिन्यूसली यही आ रहा है, तो ये रिदम कहला रहा है। तो एक्टॉपिक से सिंगल बीट, नॉर्मल तुम्हारा साइनस रिदम चल रहा है, इंटर्न तुमसे बात कर रहा हूँ, और सॉरी फाइनल ईयर्स एंड इंटर्न्स, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल साइनस रिदम आया है, ठीक है ना, बीट आया नॉट रिदम। उसके बाद में सडनली क्या हुआ, एक ऐसे बिजार शेप का आ गया, उसके बाद में थोड़ा टाइम रुक के यूँ करके आ गया, ठीक है। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये तो नॉर्मल साइनस बीट हो गई, ये भी एनएसबी हो गया। ये जो है दिस इज़ वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक। तो अगर ये अब हमें कैसे पता कि ये एक्टॉपिक वेंट्रिकल है कि एक्टॉपिक जंक्शनल भी हो सकते हैं। एट्रियस में एक बीट कहीं से भी आ गई तो कैसे पता कहाँ से। सेम वही कॉन्सेप्ट कि ये बड़ा सा क्यू आर एस है, मतलब सबसे बड़ी गंदी सी चीज़ दिख रही है, तो दिस इज समथिंग बैड, हाउस द फील बैड। तो ये है, एंड ये वाइड है, तो दैट इज़ वाइड कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस विथ नो पी वेव। कोई पी वेव नहीं इससे पहले, तो टी वेव थी ना, इसकी टी वेव, तो ऑब्वियसली ये वेंट्रिकुलर रिदम है। और वैसे भी वाइड मिल रही तो ज़्यादा सोचा मत करो, मिल जाता है। तो वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स पे डील कर सकते हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वीटी में डील कर सकते हो। वाइड क्यू आर एस देख रहे हैं ना, वाइड कॉम्प्लेक्स में हम वीटी वीफिब या फिर वीटी इज वी टेक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ठीक है, वी टेकी वी एक्टॉपिक्स में जा रहे हैं। या फिर जो हमने पीएसवीटी पढ़े थे ना गाइस, पीएसवीटी जंक्शनल लेवल पे पीएसवीटीज हो रहे थे, जंक्शनल रिदम है ओरिजिनली है। अब जंक्शनल रिदम क्या हो गया, हार्ट में जंक्शन से जनरेट हो रहे थे, ये हार्ट यहाँ से जनरेट हो रहे थे, बंडल ऑफ हीज के थ्रू जा रहे थे। जब इस फास्ट मस्त वाले रोड के थ्रू जा रहे थे तो हमारे पास में नैरो क्यू आर एस आ रहे थे। व्हाट इफ़ रोड में प्रॉब्लम आ जाए, व्हाट इफ इस रोड में प्रॉब्लम आ जाए, समझ रहे हो, इस रोड में ही प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। इस रोड में प्रॉब्लम आ गई तो
हमारा QRS कंडक्शन धीरे धीरे हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये बंडल ऑफ हिज के दो पार्ट होते हैं ना, बंडल ऑफ हिज के फाइनल डेज तुम लोग देखो, बंडल ऑफ हिज जो था वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, ठीक है। इंटर्स तुम देखो, ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये देता है सेप्टल ब्रांच, एक ये देता है पोस्टीरियर ब्रांच और एक एंटीरियर ब्रांच देता है, ठीक है ना। तो इसके तीन ब्रांच हो सकते हैं। इनफैक्ट इंटर्स तुम्हारे लिए खास बात है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई, इस रोड में प्रॉब्लम आ गई, मैं इस वाले चीज़ को मैं इलेबोरेट किया, फिर इस वाले में अगर प्रॉब्लम आ गई, दिस इज़ कॉल्ड एज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या रहेगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। अगर ये तो इसका सेप्टल ब्रांच हुआ, ये इसका पोस्टीरियर ब्रांच हुआ और ये इसका एंटीरियर ब्रांच हुआ। तो अगर पोस्टीरियर ब्रांच में ब्लॉक आ गए तो ये हेमीफेसिकल कहलाएंगे। ये तो बंडल हुआ एक पार्ट हुआ ब्रांच का, इसके ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हेमीफेसिकल कहलाते हैं। तो ये हेमीफेसिकुलर ब्लॉक्स है। अगर तुम्हें ब्लॉक सिर्फ इसमें मिल गया तो ये कहलाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर हेमीफेसिकल ब्लॉक, ये पोस्टीरियर ब्रांच है। तो यहाँ पे तुम्हें इसके अंडर में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो तुम्हें सिर्फ RBB मिल सकता था, इसके ब्रांचेस नहीं होते। लेफ्ट साइड में तुम्हें LBB मिलेगा, इसके बाद में मिलेगा लेफ्ट एंटीरियर हेमीफेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमीफेसिकुलर ब्लॉक। क्या होते हैं वो बहुत आगे की चीज़ें, इफ़ यू वांट वैसे यू शुड नो इंटर्न्स, बट स्टिल वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। हमारे अप्रोच टू टेकी एरिया में ज़्यादा यूज़ है नहीं उसका, इन ब्लॉक उसका। बस यहाँ पे एक टर्म आता है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। ये तुम एक सिंगल ब्लॉक को RBB बोला या LBB बोला, है ना। व्हाट इफ़ कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको ना इसका ब्लॉक हो रहा होता है, LAHB का ब्लॉक प्लस RBB ब्लॉक, दिस प्लस ईदर ऑफ दिस ब्लॉक, इनमें से कोई एक चीज़ को ना हम बोलते हैं बाईफेसिकुलर ब्लॉक। तो ये तुम्हें आना चाहिए, बस टर्म और कुछ है नहीं इसमें ऐसा, जस्ट एक फैक्ट का बात हो गया, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने बेसिकली ये देख लो कि अगर ऐसा कुछ ब्लॉक आता है, इस रोड में प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो PSVT का जो रिदम है, हाँ वो क्या होगा, वाइट कॉम्प्लेक्स QRS के साथ में आएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन स्लो हो जाएगी तो QRS आराम से फैल के आएगा, राइट। अब ये मैं वाइट कॉम्प्लेक्स QRS में PSVT हो सकता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि कुछ PSVTs ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें P वेव्स नहीं आए, एब्सेंट है ना। तो वो ऐसे वाले वाइट कॉम्प्लेक्स QRS बहुत ज़्यादा मिमिक करेंगे तुम्हारे वेंट्रिकुलर रिदम को। अगर तुम बोलोगे कि सर अगर ऐसे नोट से भी अगर ब्लॉकेज है और ऐसे नोट के थ्रू आए ये रिदम, तो भी हमें वाइट कॉम्प्लेक्स QRS मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। बहुत तो सही सोचना है तुम्हारा, लेकिन तब तुम्हें एक नॉर्मल P वेव भी मिल जाएगी, तो वो चीज़ कंफ्यूज नहीं करती है, गेटिंग इट। पर अगर PSVT रिदम वाले आएंगे, इसी हार्ट में बंडल ब्लॉकेज है और उसमें रिदम यहाँ से जनरेट होगी, सपोज PSVT डेवलप कर गया विद द बंडल ब्लॉक्स, तो इसमें क्या होगा कि PSVT की वजह से या तो P वेव्स इन्वर्टेड हैं या फिर एब्सेंट है। इन्वर्टेड P वेव्स खोजना छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत ऑलमोस्ट नहीं दिखते, वो होते हैं पर दिखते नहीं हैं। तो वो नहीं दिखेगा तो, और तुम्हें बड़ा सा QRS खाली दिखे तो तुम उसको बहुत ईजिली ना वेंट्रिकुलर रिदम मान लेते हो। तो बेसिकली वाइट कॉम्प्लेक्स QRS में हमें सोचना क्या क्या है, VTEC, VFib, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स या फिर PSVT विद ब्लॉक, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़ कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस फोर। तो देखो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक तो तुम्हें पता है, मैंने बता दिया, एक बीट आ गई वही है। VTEC, VFib के लिए तुम ऐसा समझ लो कि VFib बेसिकली साइन वेव्स के पैटर्न में आने लग जाती है सब कुछ, ठीक है। VFib का तुम देखोगे तो साइन वेव्स के पैटर्न में आ रही है, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मज़ा तो उसमें आता है जिसमें तुम VTEC देखोगे, ठीक है। ऐसे टाइप की VTEC चलती है। इट्स नॉट कि ज़रूरी नहीं कि छोटी हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि VTEC में ब्रॉड कॉम्प्लेक्स QRS आएंगे, स्पाइकी होंगे, लो समझ रहे हो, स्पाइकी से होंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू वेरी डिटेल और बहुत टेक्निकल, तो तुम्हारे जो चीज़ से तुम जल्दी समझ जाओ दिस वर्ड। स्पाइकी कहीं लिखा नहीं है गाइस, इनफैक्ट स्पाइकी बोलना टेक्निकली हैरिसन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिदम में, बट स्टिल अपना काम चलाना है तो अपने को सीखना है ना। अपने को PhD नहीं करनी है, MD मेडिसिन मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ नहीं जानना है इसमें। चलो, तो VTEC का रिदम यूँ रहेगा, PSVT विद ब्लॉक का भी रिदम ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली VFib को तो तुम बहुत आराम से पहचान लोगे, टॉपिक्स तुम पहचान लोगे। कहानी यहाँ पर आती है ये और ये ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, अब कैसे पता करें।
तो इसके लिए ना कुछ क्राइटेरियाज यूज़ होते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं चाहता कि तुम लोग ये क्राइटेरियाज जानो, फाइनल ईयर्स बिल्कुल नहीं, इंटर्न्स तुम इनके नाम जानो, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली क्राइटेरियाज यूज़ होते हैं वो ब्रूगाडास क्राइटेरिया यूज़ होता है। और एक्चुअली ना ये बहुत ही डेवलपिंग चीज़ है, हर दिन हर साल कुछ ना कुछ नया आ जाता है। ब्रूगाडा और वर्निक्स होता है। ब्रूगाडा क्राइटेरिया तो हम कॉमनली यूज़ करते ही हैं। वर्निक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये हैरिसन में दिया हुआ है, तो बेसिकली इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा, ये 2008 में आया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। ये बहुत पुराना है, नाम जानो यार और कुछ मत जानो, कुछ नहीं रखा है। नाउ अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया अभी तक में, एक बार रिकैप करते हैं। तो एट्रियल रिदम देख लिया, जंक्शनल रिदम देख लिया, वेंट्रिकल देख लिया। वेंट्रिकल के अंदर में क्या क्या देखा, चार रिदम क्या क्या थे, वी फिब, वी टेक, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक या फिर PSVT विथ एबेरेंसी ब्लॉकेज। जंक्शन रिदम में हमने PSVT को ही डील किया था फाइनल ईयर के लेवल में, और वैसे उसको मैंने क्या कहा था, AVRT हो सकता है या AVNRT हो सकता है। वैसे जो मेरे PG कलीग्स हैं वो समझ जाएंगे कि इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ, पर नहीं जाते यार उसमें बच्चे। तो फिर यहाँ पे हो सकता है नॉर्मल साइनस रिदम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद साइनस टेकिकार्डिया हो सकता था, ए फिब हो सकती थी, ए फ्लटर हो सकती है, एट्रियल टेकिकार्डिया हो सकता है, पहले तुम ये देखो। फिर मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया हो सकता है। एक इसी का भाई होता है वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर, कभी देख लेना, मतलब नेट में पढ़ लेना, मैं अलग से डिस्कस कर रहा है। मतलब हार्ट रेट का डिफरेंस है, इसमें का 100 के ऊपर हार्ट रेट है, इसमें 100 के नीचे हार्ट रेट है। जब मैं ये बताऊंगा तब समझ लेना 100 के नीचे को वैब बोलते हैं, खत्म कर पानी। एनीवेज ये तुम्हें पता है, साइनस टेकिकार्डिया ये चीज़ स्पीड बढ़ गई तो होगा। ए फिब में क्या होगा, अब हम ए फिब, ए फ्लटर, एट्रियल टेकिकार्डिया इन चारों को देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स डील विथ एट्रियल टेकिकार्डिया से स्टार्ट करते हैं। तो एट्रियल टेकिकार्डिया में क्या होगा कि जो हार्ट थी उसमें एट्रिया ऐसे नोट के अलावा किसी और पॉइंट से रिदम जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो रिदम आएगी, फास्टली आएगी किसी और पॉइंट से, सपोज ये वाला पॉइंट है तो बार बार ये रिदम जनरेट कर रहा है, यहाँ से नहीं आ रही, यही जनरेट कर रहा है ए बी नोड में। तो बेसिकली पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी है, अगर यहाँ से आ रही होती है, इस डायरेक्शन में आ रही थी, यूँ करके पी वेव आ रही थी जब, तो इसकी मॉर्फोलॉजी अलग थी जब पी वेव ऐसे आ रही थी। तो अब यहाँ से आ रही पी वेव तो मॉर्फोलॉजी अलग होगी। तो बेसिकली एट्रियल टेकिकार्डिया में क्या होगा, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव होगी, मॉर्फो डिफरेंट होगा। ऐसा नॉर्मल साइनस में इस तरीके से आती थी ना, वैसे पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब अजीब सा कुछ सा भी शेप हो सकता है, कुछ सा भी शेप का पी वेव आ जाएगा, पर डेफिनेटली नॉट उस वाले शेप का, ठीक है ना। बेसिकली हर लीड में कैसे दिख रही है उसके हिसाब से ना हम पता कर सकते हैं कि कैसी आ रही है। लॉजिकल है ना यार, मैंने क्या बताया था, 2 लीड सिस्टम है, फाइनली तो इतना लॉजिक आना चाहिए ना कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लीड सिस्टम की बात करूँ, V1 से लेके V6 का प्लेसमेंट देखूँ, तो अभी क्या हो रहा था कि V1 लीड की बात करता हूँ। जब ये लीड ऐसे नोड से रिदम ऐसे करके जा रही थी तो V1 के लिए तो परपेंडिकुलर था, V1 इसको परपेंडिकुलर देखा तो V1 में बाईफेजिक आ रही थी पी वेव, है ना। अब अगर यहाँ से कोई पी वेव जनरेट होगी रिदम तो ऐसे करके आएगी, V1 की तरफ आएगी वो रिदम, यहाँ से आ रही थी, जब यहाँ से यहाँ जा रही थी तो V1 के लिए बाईफेजिक थी, V1 ये है। लेकिन जब रिदम यहाँ से जनरेट होगी तो वो यहाँ से जनरेट होकर इस तरफ में आ रही है तो V1 में पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ कहीं की लीड के लिए बाईफेजिक हो जाएगी। तो सब बहुत ही वेरिएबल चीज़ है, तो पॉइंट इसकी पीरियड की मॉर्फोलॉजी कुछ अलग रहेगी, ये ध्यान रखो, ज़्यादा नहीं सोचना। एट्रियल टेकिकार्डिया सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट इज एट्रियल फ्लटर, ये आना चाहिए गाइस, ये तुम्हें नहीं आता फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं आता फेल हो जाओगे। फ्लटर में क्या होगा कि एट्रिया की रेट बहुत बढ़ गई है, तो एट्रिया बहुत ज़्यादा फायर कर रहा है, एट्रिया बहुत ज़्यादा फायर कर रहा है, और एवी नोड जो है ना वो इतना स्लो होगा, एवी नोड तो ऐसे भी स्लो है, तो यहाँ से अगर 100 इम्पल्स आके निकले फटाफट, इसमें से कुछ एवी नोड तो स्लो है तो वो कुछ एक कोई भेज पाता है इसमें से, समझ रहे हो। ये बहुत सारे छोटे छोटे रोड्स थे, उसमें से बहुत सारी कारें आई। एवी नोड में मैंने बताया था 2 लेन थे, वो 2 लेन में इतनी सारी कार नहीं जा सकती, है ना। तो अगर यहाँ से 100 रिदम जनरेट हुई है तो इसमें से मान के चलो अगर 100 में से हर दूसरी रिदम जा रही है तो 50 ही पहुँच पाएंगे। 100 में से अगर हर तीसरी रिदम पहुँच रही है तो यहाँ पर में से 33 पहुँच पाएंगे। 100 में से अगर हर चौथी रिदम यहाँ से पास हो पा रही है तो 25 रिदम्स नीचे की तरफ जाएंगी, है ना। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन एट्रियल फ्लटर में कितनी रिदम्स जा रही हैं, या तो 1:1 के रेशियो में जा रही हैं रेयरली,
या फिर ऐसा होता है कि एट्रिया में 2 रिदम जनरेट हुई है और 1 रेशियो पास हो रही है, या फिर हो सकता है 3 रिदम जा रही है 1 रिदम पास हो सकती है। अब ये सब है कितनी एट्रियल रिदम्स है, ये सारी एट्रियल रिदम्स है, 4:1 ले लेते हैं, ये सारी एट्रियल रिदम्स है। कितनी एट्रियल रिदम आ रही है, एट्रियल रिदम। और ये ओके गाइस, तो कंटिन्यूइंग विथ वेयर वी लेफ्ट, हमारे पास में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिदम्स, नंबर ऑफ एट्रियल रिदम्स जिसके बाद में एक पास हो रही है ए बी नोड में, हर चौथी रिदम पास हो रही तो 4:1 का रेशियो, हर 3 एट्रियल रिदम के बाद में एक वेंट्रिकुलर आ रही तो वो वाला रेशियोज़ के हिसाब से। अब ये जो मैंने ECG बनाया वो बनाया मैंने 2:1 ब्लॉक का एट्रियल फ्लटर का, वो जिसमें कि हर 2 एट्रियल रिदम के बाद में एक QRS आ रहा है, ठीक है, ये T आ गया, ये 2 के बाद में एक आ रहा है, ये जो QRS को इसकी वजह से था, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग में चलेगा, तुम्हें पता है ये चीज़, नथिंग न्यू इन दैट। देन सिमिलरली अगर मैं 3:1 का ब्लॉक बनाऊंगा या 4:1 का बनाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद में एक रिदम आएगी छोटी सी P, उसके बाद T, उसके बाद 1 2 3 4 फिर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लंबा ब्लॉक दोगे ना तुम्हें ये जो पैटर्न है ये सॉ टूथ पैटर्न मिलेगा। तो एट्रियल फ्लटर में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड सॉ टूथ। देख लेना इसका ECG, मतलब मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझो, ये पैटर्न सॉ टूथ और सब फालतू की बात छोड़ो। एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन सॉ टूथ याद है तो ठीक है, नहीं याद है आ ही जाएगा यार, ये सब कॉन्सेप्ट समझो, हिट द बुल्स आई, कॉन्सेप्ट याद समझ लिया, दोबारा कभी नहीं बोला, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। 2:1 का ब्लॉक का मतलब क्या। नाउ एक हमारी थर्ड रिदम होती है एट्रियल लेवल में, हमने 2 रिदम देख लिया ना, एक तो ऐसे नोड एट्रियल रिदम्स में ऐसे नोड रिदम देख लिया, नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस टेकीकार्डिया देख लिया, एट्रियल टेकी देख लिया, एट्रियल फ्लटर देख लिया। अब ए फिब की बात करते हैं। ए फिब में क्या हो रहा है कि बेसिकली केओस है, केओस, एज सिंपल एज दैट, वन वर्ड टू डिस्क्राइब एट्रियल फिब्रिलेशन इज केओस, ठीक है, केओस मची पड़ी है। हार्ट इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया इतनी फास्ट कर रहा है कि ढंग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा, बस उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो रिदम बेस लाइन है उसमें बहुत सारी पी वेव्स आएंगी, बहुत सारी पी वेव्स, और एक सडनली कोई सी भी एक पी वेव्स के बाद ना अचानक से एक QRS आ जाएगा, वो अचानक से नीचे कंडक्ट हो गई, फिर भरी पड़ी है पी वेव्स, फिर अचानक से कोई एक कंडक्ट हो गई, तो किसी को कुछ नहीं पता कौन सी कंडक्ट हो रही, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जब मन आया तब एक कंडक्ट हो गई, जब मन आया तब एक कंडक्ट हो गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो बेस लाइन है ECG पेपर की, जो बेस लाइन होती है उसमें बहुत छोटी छोटी पी वेव्स, वाई छोटी छोटी, बिकॉज ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं एट्रिया, बस यूँ करके फड़फड़ा रही, फिब्रिलेट कर रही है, फाइन मूवमेंट्स दे रही हैं, तो पी वेव्स छोटी छोटी, कितनी सारी, बहुत सारी क्यों, क्योंकि फिब्रिलेशन 250 300 250 300 के अराउंड में चलता है, और अचानक से एक वेव आ रही है, फिर बहुत सारा फेवरेट करके फिर से कुछ आ रहा है, तो इरेगुलर के हमें पता नहीं है। एट्रियल फ्लटर में तो हमें पता था कि हर 2 के बाद में एक आ रहा होगा, 3 के बाद में एक आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं, कोई रीज़न, इसलिए इरेगुलर रिदम एट्रियल फ्लटर में, और जो हमारा जो बेस लाइन है वो फिब्रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली हमारी जो ECG पे रिदम आती है वो इस तरीके से आती है, देखो ये रिदम चलेगी। तो बेसिकली अब क्या होता है ना, इसको एग्जैक्टली हम पी वेव नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब पी वेव दिख ही नहीं रही एक तरीके से, इतनी बेस लाइन ही हमारी जो है वो फिब्रिलेट कर रही है। तो एक फिब्रिलेटिंग बेस लाइन विथ नो पी वेव, एक्चुअली दे रहा है पी वेव्स, ये सब कुछ पी वेव्स ही हैं, बट पी वेव की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ऐसे वाली वो नहीं है कुछ, तो विदाउट एनी पी वेव एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाती है, सिंपल सा। नाउ हमारी आती है एक एंटिटी नोन एज मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया, ठीक है। एट्रियल टेकीकार्डिया क्या थी, एक सिंगल फोकस से बहुत सारे निकलना, मल्टीफोकल में बहुत सारे फोकस से निकलेगा, ठीक है। तो वर्सेस हम ऐसा कर लेते हैं, एक हम अच्छा सा करते हैं, तो आपको समझ आएगा बढ़िया से। व्हाट वी डू इज कि हम ना ऐसे साइनस टेकीकार्डिया वर्सेस एट्रियल टेकीकार्डिया वर्सेस वो ले लेते हैं, मैट ले लेते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म क्या होगा, साइनस टेकी का तो ऐसे नोट का रिदम है, ऐसे नोट फास्टली जनरेट कर रहा है, इसमें 1 पॉइंट अदर देन
ऐसे नोड वो फास्टली जनरेट कर रहा है। इसमें मैनी पॉइंट्स हैं, मैनी फोकाई है बेसिकली अदर देन ऐसे नोड। तो इसमें पी वेव कैसी रहेगी, टिपिकल जैसे दिखती है, टिपिकल कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है। इसमें क्या रहेगी, अदर देन टिपिकल रहेगी। शेप, पी वेव की शेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अदर देन टिपिकल रहेगी, इसमें भी अदर देन टिपिकल रहेगी। ईसीजी में दोनों में ही अदर देन टिपिकल शेप मिलेगा। लेकिन फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो कंपेयर एवरी टू पी वेव, कंपेयर एवरी पी वेव। तुम दो पी वेव जैसे कि पी ईसीजी रिदम आएगी तो एक पी वेव क्यू आर एस आया, फिर पी वेव क्यू आर एस, इस वाले पी को पकड़ के इस वाले पी के साथ कंपेयर करो मॉर्फोलॉजी, तो इसमें सेम आएगा क्योंकि एक ही जगह से जनरेट हो रही है, तो इसमें सेम आएगा। इसमें भी सेम आएगा कि एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहा है, उसका शेप कुछ और होगा पर हर बार उसी शेप का होगा, तो सेम होगा। अदर देन टिपिकल शेप होगा, कुछ एटिपिकल शेप होगा, मतलब दिस इज एटिपिकल ओनली ना, एटिपिकल शेप होगा लेकिन हर रिदम में सेम शेप आएगा। इसका क्या होगा कि ये एटिपिकल शेप होगा लेकिन हर रिदम में ये कहीं और से भी जनरेट होगा, अलग अलग फोकाई आ रहे हैं तो डिफरेंट होगा, समझ गए। मैट इज़ एटिपिकल शेप ऑफ पी वेव विद डिफरेंट फोकाई। एटिपिकल शेप ऑफ पी वेव बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम ऐसे नो, तो ऐसे में सिर्फ टिपिकल आता था, तो एटिपिकल हो सकता है, लेकिन अलग अलग शेप होगा हर वेव के साथ में, हर रिदम के साथ में पी वेव का शेप चेंज होता जाएगा, दैट इज़ मैट। अब मैट की डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पी वेव्स की शेप अलग अलग आना, ठीक है। एक ये है, एक ऐसी करके कुछ आ गई सपोज, एक पी वेव जो है वो ऐसे करके आ गई, 3 अलग अलग पी मॉर्फोलॉजी की पी वेव मिल गई हमें, तो ये मैट है। इसमें क्या होगा कि हर रिदम में एक अलग टाइप की सपोज इस शेप की पी वेव आ रही थी, तो ये हमेशा ही इस शेप की आई, ठीक है। तो एटिपिकल तो थी लेकिन हर बार सेम आई, इसमें एटिपिकल तो है लेकिन हर बार अलग अलग आई। ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 डिफरेंट मॉर्फो ऑफ पी वेव्स, ये मैट की डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा कि हर बार सेम आएगी और हर बार नॉर्मल आएगी, तो हम साइंस में पढ़ते हैं ना नॉर्मल साइंस, तो इतना 12th में पढ़ा है वो वाली, ये आएगी, ठीक है ना। तो ये बस ध्यान रखना, ये हो गया। इसी का छोटा भाई होता है मैट का वैप, वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। उसमें क्या होता है, वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। मैट में क्या होता है ना, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 होती है, इसमें हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 होती है, लेस देन 100 होती है, कुछ नहीं है, बस पॉइंट है तो बता दिया। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं इस सब कुछ को एक ना उसमें दिखाता हूँ, एक चार्ट में जिसमें कि सब कुछ एक साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द चार्ट, एक्चुअली लेट मी शो यू गाइस, दिस इज़ आवर चार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी स्टेबलाइज। हाँ, इसकी तुम फ़ोटो खींच लो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो व्हाट वी डू इज़ हम देखेंगे नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस एल्गोरिथम में जितना पढ़ा है सब कुछ इसी में ही है, तो तुम्हें बेसिकली ये जानना है। अभी तक मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, तब ये जानना है। तो बेसिकली हमारे पास में कोई पेशेंट आता है जिसको नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस की ईसीजी है। बेसिकली तुम्हारे पास में एक पेशेंट आया, तुम्हारे पास में आया पेशेंट, वो कह रहा है चेस्ट पाल्पिटेट हो रहा है, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, हड़कड़े मच रही है। हमारे मैम से इमरजेंसी में पेशेंट्स हड़कड़े मच रही बोलते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक ईसीजी लेते हैं उसकी, ठीक है ना। ईसीजी लिया, बेसिकली हम तुम्हें ACLS एल्गोरिथम्स पढ़ा रहा हूँ गाइस। ACG लिया हमने, और हमने सबसे पहले उस ACG का क्या देखेंगे हम, उसका ACG से हमारी फील कैसी है, हाउ इज़ आवर फील ऑफ द ACG, याद है ना, वो तो मैंने बताया हमको। सबसे पहले हमारे ACG में देखते ही क्या होगा, फील कैसा है। उसके बाद हम उस ACG का रिदम देखेंगे, उसके बाद हम उसका रेट देखेंगे। रेट के बाद में जब मुझे रिदम पता चल जाएगा रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ब्रेडिकार्डिया है कि ट्रेगिकार्डिया है, ठीक है, या नॉर्मोकार्डिया चल रहा है या टेकी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि क्यूआरएस कैसा है, क्यूआरएस कैसा है ना। तो सपोज रिदम टेकीकार्डिया वाला रिदम है और क्यूआरएस कैसा है, मैं पूछा क्यूआरएस अगर नॉर्मल आए, नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस आए, या फिर क्या हो सकता है वाइट कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस में वेंट्रिकुलर, वो मैं बाद में देखूंगा, पहले नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस देखते हैं। तो नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस में एक बार इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम पहले अप्रोच देखते हैं। तो नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस में अगर हमारा पेशेंट स्टेबल है तो हम उसके साथ कुछ दिमाग लगाएंगे,
अगर नैरो कॉम्प्लेक्स पेशेंट है उसको वो अनस्टेबल है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अनस्टेबल यानी कि मतलब उसको साइड सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपोवोलिमिया सॉरी हाइपोटेंशन के ऑल्टरमेंटेशन में जा रहा है तो सीधा सा डिसीशॉल्व। अगर पेशेंट स्टेबल है तो थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे हम। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो अभी हमने रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है निकाला था ना, यहाँ पे डिसाइफर किया था, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो पेशेंट की रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है, ठीक है। तो अगर पेशेंट की रिदम इरेगुलर है तो उसमें तीन ही डिफरेंशियल बन सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन जो मैंने बताया था, मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डी जो मैंने बताया था वो भी इरेगुलर होगा क्योंकि बहुत सारे फोकाई से वो फायर हो रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ये फोकाई फायर कर दिया, कभी वो कर दिया, तो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डी फाइनल ईयर्स तुम्हारे एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाएगा। इरेगुलर रिदम का एग्जाम्पल बताओ। एट्रियल फिब्रिलेशन, मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया। वो फाइनल ईयर्स जिन्होंने अभी लास्ट वीक में से क्लास किया था, मैं तुम्हें बोला था ना ये वाला चीज़ यहाँ से था। नाउ द पॉइंट इज़ कि एट्रियल फ्लटर वैसे तो मैंने बताया कि फिक्स ब्लॉक होता है 4:1 का या 2:1 का, तो हर 2 के बाद एक बीट आ रही है, 2 के बाद एक आ रही है, सब बढ़िया। लेकिन कभी कभी एट्रियल फ्लटर में क्या होगा कि वेरिएबल ब्लॉक्स होंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि कभी 2 के बाद में एक वेंट्रिकुलर रिदम आई, कभी कभी 3 के बाद में एक वेंट्रिकुलर रिदम आई, है ना। तुम लोग जो हार्ट रेट देखते हो गाइज, मैंने एक कॉन्सेप्ट भी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले वीडियो में कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ईसीजी में हार्ट रेट, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वेंट्रिकुलर रेट और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पल्स रेट, है ना। तो बेसिकली ईसीजी में जो हम देख रहे हैं, ईसीजी में जो पी वेव्स दिख रही है वो ऐसे नोट की फायरिंग का रेट बता रहा है, नंबर ऑफ़ पी वेव्स इन 1 मिनट। बेसिकली ऐसे नोट की फायरिंग का रेट बता रहा है। सपोज 100 बार उसने फायर किया ऐसे नोट में, तो बेसिकली वो मुझे क्या बता रहा है, ईसीजी में 100 पी वेव्स 1 मिनट में ऐसे नोट कितने बार फायर किया। अब ईसीजी में जो हमारे पास में क्यूआरएस है, अगर वो मुझे 25 मिल रहे हैं और ऐसे मिल रहे हैं कि हर 4 पी के बाद में एक क्यूआरएस मिल रहा है, तो यानी कि 4:1 का कंडक्शन चल रहा है, तो ये जो है वो वेंट्रिकुलर रेट बता रहा है मेरे को ईसीजी का क्यूआरएस। अब मैं पेशेंट का हार्ट साउंड जब सुनूंगा तो क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, S1 S2 होते हैं, है ना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से करस्पॉन्ड करते हैं वो। तो वो बेसिकली जो हार्ट साउंड मैं सुन रहा हूँ, हार्ट रेट जो मैं सुन रहा हूँ, बेसिकली वेंट्रिकुलर रेट सुन रहा हूँ मैं, है ना। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं सुन रहा हूँ मैं, वेंट्रिकुलर रेट सुन रहा हूँ। वेंट्रिकल से हार्ट वॉल्स डिपेंड करते हैं ना वेंट्रिकुलर मोशन के हिसाब से। और वेंट्रिकुलर मोशन को अगर मैं सुन रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं S1 S2 के हिसाब से मैं हार्ट रेट ऑस्कल्टेशन पे पता कर रहा हूँ। तो अगर एट्रियल फ्लटर का पेशेंट है मेरे पास में, एट्रियल फ्लटर का, तो उसका ऐसे नोट का रेट सपोज 100 है और 4:1 का कंडक्शन हो रहा है, तो उसका वेंट्रिकुलर रेट कितना होगा, 25। हार्ट साउंड में एस्कल्टेशन में कितना सुनूंगा, 25। अब मैं उसका पल्स रेट देख रहा हूँ यूँ पकड़ के, है ना, मैं यूँ करके उसका पल्स रेट देख रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा पल्स रेट में कि जो 25 वेंट्रिकुलर रेट थे उसमें से कितने वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, इतनी 25 तो कॉन्ट्रैक्शन हुए, कितने इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुए जो कि ब्लड को फोर्सफुली पेरिफेरीज तक पहुंचा पाए रेडियल आर्टरी पे जहाँ पे मैं पल्स पाल्पेट कर रहा था, तो वो पल्स रेट होगी। तो कभी भी पल्स रेट वेंट्रिकुलर रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती ना। वेंट्रिकुलर रेट जितना होगा उसमें से कुछ जाएंगे, नॉर्मल हार्ट में तो सारी चली जाती है, उसमें कुछ जाएंगी। तो इन दैट वे ना, एक होता है ईसीजी में ऐसे नोट का रेट, एक क्लिनिकली एस्कल्टेशन पे मिलता है हार्ट रेट, और एक होता है पल्स रेट, ठीक है ना। तो अब हम जो इरेगुलर रिदम की बात कर रहे हैं ना, कि हम पल्स रेट में पल्स में अगर पेशेंट का फील करते हैं तो उसमें इरेगुलर मिल रहा है हमें, तो या तो वो एफिब की वजह से हो सकता था, मैट की वजह से हो सकता था। एट्रियल फ्लटर में तुम सोचो कि अगर पेशेंट का वेरिएबल ब्लॉक चल रहा है, पेशेंट के ब्लॉक्स बहुत सारे वेरिएबली आ रहे हैं, कभी एक साइकिल होता है जिसमें 2 पी वेव्स के बाद में एक क्यूआरएस आ रही है, कभी हो रहा है 4 के बाद में आ रही है, तो जो हमारे वेंट्रिकल में कंडक्शन है वो फिक्स नहीं हो रहा, कभी आ रहा है, कभी थोड़े टाइम बाद आ रहा है, कभी जल्दी आ जा रहा है, तो वो भी इरेगुलर में आ जाएगा, ठीक है ना। उसकी फायरिंग अलग है, इसकी फायरिंग अलग है, ठीक है ना, ये बस समझ लेना। एट्रियल मतलब बेसिकली एट्रियल साइड की जो फायरिंग हो रही है वो पी वेव्स के फॉर्म में आ रही है, वेंट्रिकुलर की फायरिंग है वो क्यूआरएस के फॉर्म में आ रही है। तो जो हमें इरेगुलरिटी देख रहे हैं क्यूआरएस की इरेगुलरिटी देख रहे हैं। ये जो इरेगुलर है ये हम क्लिनिकली हार्ट रेट देखते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्लिनिकली यहाँ पे हम हार्ट रेट देखेंगे और ईसीजी पे क्यूआरएस को देखेंगे, तो क्यूआरएस हमारा जो है वो इरेगुलर आ रहा है कि रेगुलर आ रहा है, उसके बेसिस पे सब कुछ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम में हम देखेंगे, अब हमारे पास में रेगुलर रिदम है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, हमारे पास में क्यूआरएस को हमने देखा कि नैरो है कि वाइड है। क्यूआरएस अगर वाइड हो तो बाद में देखेंगे, नैरो था
तो रेगुलर था कि इरेगुलर में 3 रिदम देख लिया। अब अगर रेगुलर है तो हम इसमें क्या देखेंगे कि पी वेव्स क्या प्रेजेंट हैं। अगर पी वेव्स प्रेजेंट है तो वो रिदम कहाँ से होगी, बोलो बोलो बोलो। पी वेव्स अगर प्रेजेंट है तो वो रिदम मोस्ट लाइकली एट्रियल होगी, प्रेजेंट है और पॉजिटिव है बेसिकली, तो बेसिकली ये रिदम एट्रियल होगी। और अगर ये पी वेव्स एब्सेंट है, ये हमें नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम टेकी एरिथमियाज डील कर रहे होते हैं तो बहुत क्यू आर एस के बाद में एक छोटा सा वेव होता है, ज़्यादा टाइम होता है, फिर नेक्स्ट क्यू आर एस आ जाता है, तो कभी कभी मिलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पी वेव्स हमें नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैरोटिड मसाज देंगे पेशेंट को और या फिर एडिनोसिन देंगे। ये दोनों ही चीज़ होते हैं ना, कैरोटिड मसाज या वेगल मैन्यूवर्स जो कहते हैं, ये क्या करते हैं ना, वेगस को स्टिमुलेट करते हैं, और वेगस एक बार स्टिमुलेट हो गई तो बेसिकली जो हमारा जंक्शनल रिदम है ना वो कंट्रोल हो जाता है। तो जंक्शनल रिदम का कंट्रोल होना वेगल मैन्यूवर देने या एडिनोसिन देने से क्या होगा, जंक्शनल रिदम कंट्रोल होना इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ जंक्शनल रिदम, यानी पीएसवीटी हो सकता है। पीएसवीटी को फर्दर फिर हम उसमें डिवाइड करते हैं एवीआरटी, एवीएनआरटी, तुम्हें पता है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे पास में क्या हो सकता है कि रेट या तो फिर स्लो हो गई, तो रेट स्लो हो गई तो फिर हमें पी वेव्स दिखने लग जाएंगी, या फिर पी वेव्स हैं कि थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। टेकी कार्डिया के टाइम पे तो पता नहीं चला, क्योंकि डैशबॉल छोटा सा हो रखा था तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अब हार्ट रेट स्लो हुई वेगल मैन्यूवर से, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल पर्पसेस में अब हम इसको पता करना चालू करेंगे, समझ रहे हो ना। पहले पी वेव्स अगर दिख रही हैं तो वेल एंड गुड, हम सीधा सीधा आगे पी वेव्स प्रेजेंट कोशिश में हमने क्या किया, पहले कैरोटिड मसाज या वेगल मैन्यूवर दिया। वेगल मैन्यूवर में अगर रिदम कंट्रोल हो ही गया तो फिर सीधा सीधा जंक्शनल ही था। रिदम कंट्रोल नहीं हुआ, नॉर्मल साइनस रिदम नहीं आया, पर रिदम रेट स्लो हुआ है खाली, तो रेट स्लो होने पे फिर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास में अब ऐसा कंडीशन है जिसमें कि नैरो कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस है और जो पी वेव है वो आ रही है। वो पी वेव कैसी आ रही है उसके हिसाब से हमारे पास कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पी वेव आ तो रही है और ओवरऑल जो रेट है वो सॉ टूथ पैटर्न में आ रहा है, मतलब जो ECG है वो सॉ टूथ पैटर्न में आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ये जो रेट है वो ग्रेटर देन 250 चल रहा है, तो बेसिकली वो एट्रियल फ्लटर विथ सम फिक्स्ड ब्लॉक है, तभी तो रिदम रेगुलर थी। अगर विथ वेरिएबल ब्लॉक रहता तो इरेगुलर रिदम आती है, तो ये विथ वो थी। अगर हमारे पास जो पी वेव आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल साइनस टाइप की दिख रही है तो साइनस टेकीकार्डिया हो सकता है, इसको भूल जाओ, ऐसे एनआरटी को भूल जाओ, नहीं तुम्हारे लिए। ओके, उसके बाद में तो फिर बेसिकली हमने एट्रियल फ्लटर देख लिया था, साइनस टेकीकार्डिया देख लिया। अब हमारे पास में क्या थी कि हमने रेट स्लो कर लिया था या डायरेक्टली हमारे पास पी वेव प्रेजेंट थे, तो हमने पी वेव की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखे। तो अगर हमें पी वेव इन्वर्टेड मिल रही है, इन्वर्टेड पी वेव मिल रही हैं, तो उसकी क्या क्या काउजेज हो सकते हैं इन्वर्टेड पी वेव्स के, AVRT या AVNRT, बेसिकली जंक्शनल रिदम हो सकते थे। ये जंक्शनल रिदम की टाइप से सब फर्दर सब टाइप से, या फिर हमें एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी की टी वेव्स मिल रही हैं जो कि बेसिकली पी वेव्स तो हैं लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी कुछ और है, तो वो एट्रियल टेकीकार्डिया हो सकता था, है ना। और बेसिकली ना गाइज यहाँ पे एक लॉन्ग आरपी और शॉर्ट आरपी का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो बस तुम ऐसे समझो कि वो कंडीशन जिनमें आरपी इंटरवल जो मैंने बताया था पहले टाइम में, वो शॉर्ट तब होता है जब जंक्शनल रिदम होती है। तो शॉर्ट आरपी इंटरवल के ये 2 ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स हैं, तो उसमें तुम जंक्शनल याद रखो, इसको छोड़ जाओ, ठीक है। ये तुम्हारे काम की नहीं है एक्चुअली, इसको क्या इन नोट्स को मैंने अपने लिए भी बना रखे हैं, तो दैट्स व्हाई तुम्हारे काम की नहीं है। लॉन्ग आरपी बेसिकली जब एट्रियल लेवल की प्रॉब्लम होती है तब आरपी इंटरवल होता है ना, वो नॉट PR, आरपी, R ऑफ फर्स्ट वेव एंड P ऑफ सेकेंड वेव के बीच का बात। तो लॉन्ग आरपी एट्रियल पैथोलॉजी में होती है, तो एट्रियल लेवल की बात चल रही है, तुम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये दोनों एटिपिकल चीज़ें, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली तुमने क्या देखा कि रिदम जब तुम्हारे पास में नैरो थी, QRS नैरो थी और रेगुलर रिदम थी, तो फिर तुमने पी वेव है कि नहीं देखा। अगर पी वेव तुम्हें नहीं अप्रिशिएट हो रही है तो नहीं है ये नहीं बोलना, एडिनोसिन कैरोटिड दे रहा है, एडिनोसिन देना है या कैरोटिड मसाज करना, उससे पी वेव दिखने लग गई या फिर रिदम ही नॉर्मलाइज हो गई, तो फिर तो वो PSVT था, रिदम नॉर्मलाइज हो गई। तो अगर दिखने लग गई तो पी वेव कैसे दिख रही है उसके हिसाब से। अगर पी वेव हम तुम्हें फिक्स पैटर्न में दिख रही, सॉ टूथ पैटर्न में दिख रही तो ए फ्लटर बोलना है। पी वेव एकदम ही नॉर्मल दिख रही तो साइनस टेकीकार्डिया बोलना है। पी वेव की मॉर्फोलॉजी कुछ उटपटांग सी है, बट हर बार सेम मॉर्फोलॉजी की पी वेव आ रही है हर बीट के साथ, तो एट्रियल टेकीकार्डिया बोलना है। पी वेव रेट्रोग्रेड कन्वर्ट हो रही है, उल्टी जा रही है, तो उसको AVRT AVNRT बोलना है या PSVT बोलना है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो बेसिकली हमने नैरो कॉम्प्लेक्स QRS देख लिया। अब हम वाइड कॉम्प्लेक्स QRS की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली वही कहानी है कि या तो वो VFib हो सकता था, V फ्लटर हो सकता था, सॉरी VFib, VT की कार्डिया, PSVT या वेंट्रिकुलर टॉपिक। वो मैंने जब 4 रिदम बताए थे वहीं पे पिछले वाले लाइव वीडियो में, उसी में ही एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ। तो तुम लोग बेसिकली एक तुम्हारे पास ECG आता है और उस ECG में हार्ट रेट ज़्यादा है। तुमने क्या किया, ECG आया तो सबसे पहले पूछा हाउ इज़ द फील, यू फेल्ट समथिंग बैड इज़ देयर, देन यू आस्क्ड व्हाट इज़ द रिदम। रिदम तुम्हें रेगुलर इरेगुलर जो भी लगी वो तुम रख लिया अपने पास में, इन्फॉर्मेशन रख ली। दैन तुमने रेट देखा, तुम्हें टेकी मिला, तो फिर तुमने उसका नैरो है कि तुम टेकी एरिथमिया में हो तो तुमने नैरो है कि कॉम्प्लेक्स के वाइड है QRS, उसके हिसाब से डील किया। वाइड में वो वेंट्रिकल वाला जो 4 मैंने बताया था वो सोचोगे, नैरो है तो तुम ये सोचोगे, ये पूरे चार्ट को सोचोगे। इस चार्ट में फिर तुम जो तुमने पहले इन्फॉर्मेशन गैदर किया था रिदम के लिए, रेगुलर इरेगुलर, उसके हिसाब से इरेगुलर और रेगुलर वाले में चले जाओगे। की थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज़ द कॉन्सेप्ट, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने अप्रोच टू टेकी एरिथमिया देख लिया। मैं एक लिंक दूंगा इसके बाद में, उस वेबसाइट में MCQ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छी है। मैं अपने यूजी टाइम में प्रैक्टिस करता था। ये एरिथमिया वाली MCQ बहुत अच्छे तुमसे उसमें कवर हो जाएंगे, तो तुम वो देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप कुछ इसमें हेल्प हुआ होगा तुम्हारा, यू गॉट समथिंग। तो बेसिकली ECG बहुत ईजी होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ECG क्या कुछ नहीं बता देता हार्ट के बारे में। तो आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, यू फाउंड समथिंग यूजफुल। चलो ऑल द बेस्ट यार। एंड कोई भी डाउट होगा, कभी होगा, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, ठीक है। कभी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, मेरे को ईमेल कर सकते हो इसमें, और वरना यू नो मैं वॉट 32 में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे तो कभी भी आ ही सकता हूँ। जब भी बोर्ड में आओ, सीख समझ के आओ, सोच समझ के आओ, ये मेरा ईमेल ID, और डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ बैच के साथ में किया होगा ये सब। चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक्स।